Good morning, guys. Uh, Welcome to Next Gen IT courses. So this is the batch of CCNA and CCNP Enterprise, and we have our trainer also with us, Mr. Nayanjit Singh. And Hello. good morning, sir. How are you? Good morning. I'm good. I'm good. Yeah. Okay, sir. Let me just share my screen and let me show my website to students. Sure. Can you confirm me, sir, if you can able to see my screen? Yes, we can see his current screen. Okay, so guys, this is our website, nextgenitcourses.com. So we have program related to networking, cloud, and cybersecurity. We have multiple trainers who is having more than 10 plus years of experience, 15 years of experience. Somebody is from Mumbai, somebody is from even Ireland as well. And here are some demo videos and YouTube channel you can go through with us. CCNA, CCNP Enterprise, Windows Server, Linux, CEH Cybersecurity, Palo Alto F5 Load Balancer, multiple things you can see here. We have master programs as well, master tracks that you can see. Network security track combination of Palo Alto, Fortinet, F5 Load Balancer, Azure Cloud Security, multi-vendor combo. And today we have session that is CCNA, CCNP. So we are going to cover official syllabus as well, and plus we'll teach you real-time scenarios as well, so that you will be ready for jobs, right? And further, we have add-ons that is job guarantee kind of interview packages that you can take according to your requirement, and we have like international job support as well that we are starting in 1 or 2 months maximum. So we will help you to place in US, Canada, Middle East, different countries, depending on your skills and requirement. So, okay, Nayanji sir, over to you, and you can start the session, please. Okay, sure. Thank you so much. So let me share my screen first. Give me a moment. Yeah, yeah, Okay, just a minute. yeah, your screen is visible. Okay, thank you so much. Give me a moment. Just a minute. Let me connect my pen. Okay. Okay. So let me open up this. Okay. So good morning, everyone. My voice is clear. Yes, sir. Yes, clear. Okay, great. So let me first introduce myself. So my name is Nayanjit Singh, and I have more than 12 year experience in IT professionals, and I'm working many companies like Wipro, HCLs, and I have worked with network team as well as security team. And I started career with my as a system administrator. Then after over 1 year or 2 years, I just promote means switch my job as network security engineer. Then I did my Palo Alto, APC, NSA, firewalls, and all the things, load balancer. Then I know, now I'm working as a IT security engineer in my company. And last 7 to 8 years, I'm providing trainings in CCNA, CCNP, Palo Alto, Fortinet, and all the things. So this is all about myself. And if I talking about today's lecture, so we'll discuss about the CCNA and then CCNP, right? So now if I talking about CCNA and CCNP, so let me open the paint as well. So the CCNA basically is a initial level certifications, right? As a network initialization, CCNA. And first of all, I just start the lecture before.
Can you understand Hindi as well as right now? Because the course will be English Hindi mix. Guys, Yes, everyone sir. can. Yes, sir. No Yeah. problem, everyone. Okay, 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 okay. So let's discuss about first CCNA, right? What about CCNA? It's a Cisco Certified Network Associate program, right? And this is actually a basic networking. Basic networking means you will learn about what is network, how networking, what is networking, how the packages flow from one network to another network, how you will configure the router, how you will configure the switches, and little bit basics troubleshooting of the network, right? But before I started the lecture, just I want to know the people he's joining. Anyone their means anyone in this class, they are professionals, means they are experienced or not? Can you introduce yourself, someone? Hi, sir. I'm Yes. Sharath. Mm-hmm. I'm Sharath. Okay, I was working in network engineer. Mm-hmm. Okay, in NOC operations, I was currently working. Okay. Okay, related. I was currently working Cisco and Juniper related, Mm-hmm. troubleshooting hardware related and which is the hardware related and redundancy links and everything will be working on my domain. And the Okay. customer L2 VPN service we are managing currently. Okay. 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 How many experience do you have? Currently, I have 2+ years experience. Okay, Sorry. 2+. 2 plus years experience. Okay. And any certification you have, any right now you are holding? I holded my Azure and CCNA certified. Okay, CCNA certified. Okay, great. Okay, so let me, why I'm asking, guys, so because you all are working professionals, right? And you know the how the means the network and how the things are working. So let me start. So first of all, if I talking about what you will learn in this course, and all we already told you, we will cover all the official content with you, right? We are not covering in my own content, right? So if you go to the Cisco website, and you will get the all the networking concept, like just say up CCNA, CCNP, whatever. So I have this uh give me a moment, maybe. Okay, so first, if I talking about CCNA, right? So first of all, what is CCNA? It's a Cisco certified नेटवर्क एसोसिएट. तो देखो कि अगर हम सीसीएनए की बात करें, सीसीएनए हम कब करते हैं या कब रिक्वायरमेंट पड़ती है? लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी, if you want to make a career on DevOps, if you want to make a career on cloud computing, if you go anywhere in the IT domain, you need a networking knowledge. Without networking knowledge, you will get sometime in somewhere you will get stuck, right? If I talking about me, so when I start career with my as a system administrator, means I did my MCSA, and that's it. Then after some time, I realize there is some missing in my life, right? So in my career, whatever. So जब मैंने सीसीएनए किया तो मुझे पता लगा यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एनी इफ यू गो एनीवेयर गाइड्स, are you if you want to make a career in cyber security, what I was telling you, so you need a CCNA, right? CCNA आपको चाहिए ही चाहिए होगा. And if I talking about CCNA, so CCNA में क्या है? It's a basic networking. Basic networking means you will just learn about the network, what is networking, how the packet is going through one network to another network. And second thing, uh, basic router and switches configuration, and some time and something about it, and little bit is about troubleshooting. Troubleshooting means I will tell you everything, means whenever we cover any topic, and sometime I will discuss about the troubleshooting stuff on that topic as well, right? So means let's say if we're talking the OSPF protocol, so in the OSPF protocol, which type of means issue you can face, and how to tackle that kind of thing, right? So this is the CCNA syllabus. And if I talking about the
and then after discussing the syllabus, then we will discuss about some networking concept. Give me a moment, and let me zoom in. Just a minute, let's zoom in. Yeah, in CCNA course, we will first of all we will discuss about what is CCNA and who is acquired CCNA certification, types of certification, Cisco certification. You know, Cisco have many tracks. Like, one is associate level tracks, second is professional level track, and third is expert level uh, track. These are the three tracks in CCNA, right? And so not CCNA, Cisco. And Cisco have many domains like routing switching, security, data center, then your data center, then a service provider. So this is the guys actually a domain Cisco actually provide the certification: routing switching, security, data center, and service provider. We have wireless section as well, right? But if I talking about our CCNA and CCNP, so हम लोग राउटिंग स्विचिंग को कवर करेंगे. एंड CCNP के अंदर हमारे पास दो ट्रैक होंगे. वन इज एनकोर एंड सेकंड इज NRC. Encore is totally your core networking concept. Little bit some advanced, you can say it's advanced routing and switching. Core networking means advanced routing and switching. And if you're talking about NRC is totally troubleshooting. Totally troubleshooting. So first, 1 and 2 class, we will discuss about what is CCNA, what is why we require CCNA, and what is network, what is OSI model. You know what is OSI model? Anyone in this class is a fresher who has no any IT inform, I means no IT experience? Anyone have in this class? Just acknowledge. All are in professionals, experienced. Guys, if you hear my voice, so just let me answer. Uh, I think, sir, some have experience, like they are Okay. working as a desktop IT support kind of Okay, profile. okay, Yeah. okay. Means all are desktop. Okay, who is in this class? Anyone who is in desktop support engineer or server support engineer? Guys, just acknowledge, Um, because if someone has, so just let me. If it's no, so that's no. Maybe then I will request you kindly make the session interactive so that we can answer your queries, right? Then it will be helpful for you. yes, everyone, guys. Please. Okay, no problem. No problem. Are you able to mute yourself? Maybe Rahul, Mehak, Jayashree, Sarath. Okay, no problem. No problem. So let me continue. Okay. So first of all, in the CCNA class, we will first learn about networking fundamental. Networking fundamental. In networking fundamental, we will cover about OSI model. We will cover about TCP/IP model. And if I talking about OSI model, what is OSI model? So OSI model, basically it's a model where your two systems are communicating with each layer. Let's say in 1970s, I'm just giving some brief, guys. That's what we will learn. आप क्या क्या सीखोगे, क्या सब ये सारी चीजें हैं. So if I talking about 1970s, तो 1970s के time पे there's no model. Means let's say IBM, where there was company IBM, डेकनेट, उस टाइम पे ये कंपनीज हुआ करते थे जो अपने डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते थे. लेट्स से आईबीएम मेक इज ऑन कंप्यूटर ऑन डिवाइसेस ऑन प्रोटोकॉल. सो अगर एक कंपनी ने अपना एक नेटवर्क को डिजाइन करना है,
So either they will use IBM all the devices with IBM or all the devices with DECnet. Why? Because if I connect in 1970s, I'm talking about 1970s, and that time if the one computer is connected with let's say IBM, and another system is like a DECnet, and if I connect with this two system, they will not communicate with each other. Why? Because in that time IBM will use their own protocol and DECnet will use their own protocol. There's no open standard protocol that time. So क्या होता था? They will not communicate with each other. Their problem with the customers. Let's say I'm a customer or I'm opening some new company and I want to add some system in my network. Either I will purchase computers on all the devices with IBM or DECnet. Why? Because the device inter vendor communication devices will not communicate that time. So in 1970s to 1980s, the systems जो हमारे सिस्टम थे वो नेटवर्क में ऐड होते चले गए, एंड रियलाइज किया गया इन 1980 में रियलाइज किया गया कि इन फ्यूचर में भी देयर कम इशू। अगर मैं दो सिस्टम, अगर मैं अपने कंपनी ओपन कर रहा हूँ और मैं दो डिफरेंट कंपनी के वेंडर्स यूज करूँ, सिस्टम यूज करूँ, तो मैं नेटवर्क को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो दैट टाइम द मल्टीपल वेंडर्स ने मिलकर क्या रखा, एक मीटिंग रखी और एक मॉडल को डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड OSI मॉडल। और इस मॉडल का बेसिकली रीजन ये था कि मल्टीपल वेंडर्स के सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सके। So that time OSI model was launched in 1984, and who is introduced this OSI model? ISO ने 1984 में this model was introduced, and the announce is कि अगर आपको नेटवर्क में मल्टीपल वेंडर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो they should follow the OSI model. And OSI model, they have 7-layer architecture model. You call it as 7-layer architecture model. But guys, OSI model is totally theoretical concept. It is not a practical, it's a theoretical concept. Means in this OSI model, you will learn how a packet is flow in networking, how the system flow from packet flow from one network to another network, how the information goes added. So this kind of thing we will learn in OSI model. And guys, one thing I tell you, if you know about the OSI model concept, means you know the networking. So in networking fundamental, we will cover all these things. Then we have another model called is TCP/IP model. There is no difference between TCP and OSI, only the difference between the layer. In OSI, we have 7-layer architecture model. We will see in detail in our course. जब हम कोर्स को डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड आई विल टेल यू गाइस, मैं CCNA की भी बात करूं तो आप CCNA भी अगर आप सीखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने CCNA से बढ़ के चीजें सीखी हैं. मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आप खुद बोलोगे कि सर जो आपने मुझे पढ़ाया, ये किसी और ने तो हमें नहीं पढ़ाया CCNA के अंदर. अगर आपने CCNA पहले कहीं से करा भी होगा तो भी, बिकॉज आई नो, बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल गाइज. जब हम वर्किंग प्रोफेशनल से हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि नेटवर्क में क्या चीजें यूज होती है, क्या चीजें नहीं. आप ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं, आप इंटरव्यू में ज्वाइन करते हो, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाते. यू कैन नॉट क्लियर द इंटरव्यू, यू कैन नॉट परफॉर्म द योर, आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते नेटवर्क में. कभी कोई आपको टास्क दे दिया जाए, यू कैन नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अदर इंस्टीट्यूट है दे आर डूइंग नथिंग, बट मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसी नेटवर्क प्रोफेशनल से पढ़ते हैं तो आपको मालूम है जब क्या चीज सीख रहे हैं. आपको वही चीजें सिखाई जाएगी जो हैंड्स ऑन की जाती है आपके नेटवर्क में. कल को आपको कोई टास्क आया जाए कि भैया मुझे इस सिस्टम में ये चीज लाके दो, यू कैन डू दैट. तो ये हम इस तरह के लेवल की चीजें सीखेंगे. हम लोग जो भी चीजें सीखेंगे दैट इज रियल टाइम. एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू गाइस, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो एक चीज आपको मैं गाइड करूंगा कि ऑलवेज डू अ प्रैक्टिस एंड रिवीजन. बिकॉज कई लोग कहते हैं कि देखो एक चीज बताऊं कि एवरी इंस्टीट्यूट ये रिकमेंड करता है कि वी विल प्रोवाइड 100% जॉब प्लेसमेंट. अब ये 100% जॉब प्लेसमेंट कुछ नहीं होता गाइज, ठीक है. ये नहीं है कि आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया और एक बैठी बैठे कंपनी में आपको लगवा दी, जाओ कल से आपकी वहां ड्यूटी लग जाए. नो, आपको क्लियर ही करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा. आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको तैयार किया जाएगा कि इस तरह के आपको तैयार होना है, इस तरह के क्वेश्चन आंसर हमको आने हैं. बट ऑलवेज आपको भी मालूम है कि एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर
100 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ही फर्स्ट आता है। क्यों आता है? सेम बुक पढ़ रहा है, सेम चीजें पढ़ रहा है, सेम क्लास में है। वाई? क्योंकि उसकी पढ़ाई में बाकी और की पढ़ाई में डिफरेंस होता है। तो दैट्स व्हाई गाइस, अब सभी चीजों में ये चीजें रूल फॉलो करनी होती है हमें, कि जो हमें प्रैक्टिस एंड रिवीजन, वी हैव टू डू दैट, राइट? चलो वापस आते हैं अपने कोर्स पे। सो इन OSI मॉडल वी हैव 7 लेयर, and in TCP/IP, I'm just giving you guys overview. We'll see in detail. Is in TCP/IP we have 4 layer as well as 5 layer. And OSI is a theoretical concept and TCP/IP is a practical concept. It's a implementation model. TCP/IP is called a implementation model. Means all networking, all networking protocol work on TCP/IP. So that's why we will learn first OSI model, then we will will take a difference between what is the difference between TCP and OSI. Means when you learning OSI model, simultaneously parallelly you will learn TCP/IP as well. But the key difference is the layer. That's it. The working behavior are same. So we'll learn in networking fundamental what is the TCP and UDP. Then after we will learn the IP addressing. It's a very important IP addressing. Why IP address? You know very well. If you have a system and you have another system, you want to communicate with each other, you need an IP address. Without IP address, you cannot communicate. Means your packet going through the IP. Means your, if you have a packet and you want to share this packet to this system, you need an IP address. Without IP address, you cannot communicate over the network. So IP address is very important point. In IP address, we'll learn which class, how many IP addresses we have, what is the class is this. And if I talking about IP, so INA is a company or organization who is managing the IP addresses. हमारे IP address में जो classes होते हैं, क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है, D है, E है, ये क्लासेस में जो हमारे IP address से डिवाइडेड है, who is decided? INA। डिस्कस करेंगे सारी चीजें डिटेल के अंदर IP address। फिर IP address के बाद हम लोग पढ़ेंगे सबनेटिंग। In subnetting we have two type of things. One is FLSM, second is VLSM. These are two type of subnetting we will see. And another concept is supernetting. In CCNA, no one tell you the supernetting, but I will tell you what is supernetting. Subnetting, what is subnetting? Subnetting is a method to divide your or split your one large network into multiple subnets. Means subnetting is a method or technique where you will divide one large network into multiple subnetworks. This is called subnetting. And what is supernetting? It is opposite. It is combine your multiple subnetworks into a one single network. Supernetting is a method or technique, you can say, that is merge your multiple subnetworks into one single network. That is called supernetting. And we'll see what is supernetting. So subnetting and supernetting, it is a part of network fundamental. We'll learn definitely. Then after we will move into some core networking concepts. Like if you want to learn network, so you need a network component. You need to learn the network component. Network component is nothing guys, it's a multiple devices who make a network. लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर ले लूं और एक और कंप्यूटर ले लूं, क्या मैं नेटवर्क बना सकता हूं? नो। व्हाट आर मिसिंग हियर? वी रिक्वायर्ड अ वायर, वी रिक्वायर्ड अ स्विच। सो वी हैव मल्टीपल, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, सो वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस in networking. That is known as network component. In network component, systems are there, laptops are there, servers are there, cables are there, wireless, firewall. These are the network components. So we'll see the network devices or network components were the same thing. Either we called as network devices or network component, the same thing. So we will learn what is router, what is layer 2, layer 3 switches. Guys, this is a CCNA syllabus, right? We'll start with CCNA, then after we'll CCNP, right? So we'll learn what is router, what is layer 2 and layer 3 switches, what is the next generation firewall. If I talk about the firewall, so what is firewall? So firewall is a security device that is secure your network, right?
And if I talking about firewall, so we have two types of firewall. One is basic firewall, and second, guys, is a next gen firewall. What is a basic firewall and what is the next generation firewall, we'll learn definitely जब हम इसके बारे में बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, तब वहां पे मैं आपको बेसिक्स आइडिया दूंगा. अभी मैं आपको ये चीजें ऐसा लिख के बता रहा हूँ, वी विल सी इन द पीपीटी एज वेल, बट अभी के लिए सर समझ लो कि हम लोग चीजें क्या सीखने वाले हैं इन अपकमिंग बैचेस और क्लासेस, सॉरी, राइट. उसके बाद हम एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज द कंट्रोलर, व्हाट इज द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट मींस योर एंड डिवाइसेस लाइक योर राउट, लाइक योर computer, like your laptop, like your servers. These are called, guys, end devices, end point. ठीक है, एंड पॉइंट बोल सकते हो आप कंप्यूटर लैपटॉप को. सर्वर्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अलग से. तो सर्वर है पीओई. पीओई मींस पावर ओवर इथरनेट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट concept as well. Let's say, what is PoE? Can anyone tell me what is PoE in this class? Can anyone tell me what is PoE? It is PoE is a switch where there is a power supply in that switch. It provides automatic power to the switch. It don't need a separate power button. Yes, Ethernet power cable button is used as a power supply. Yes, basically, you can tell, you can say a LAN cable actually provide you the power supply. You do not need any power adapter, right? और मैं आपको बता दूं कि in networking, guys, unmute कर लीजिए, mute कर लीजिए please. Thank you so much. Thank you so much. So PoE means power over Ethernet. Means you will get a power over the Ethernet cable. Means what I'm telling guys, let's say you have a wireless access point. Let's say you have an access point, and in this access point we do not have any power supply. You have only one LAN port, and with this LAN port this power, this Wi-Fi access point will get the power, right? And if you connect this W access point, means wireless access point, means access point you connect with the switch. So what do you think, the access point will get the power from the switch? Answer is no, or answer is yes, depend on your switch model. तो देखो क्या होता है कि जो हमारे स्विचेस होते हैं ना, they come with two types of switches. One is normal switch and another is PoE switch. It is a special design for PoE switch. PoE switch is little bit costly as per the normal switch. Why? Because this switch will provide the power supply on that devices that who does not have any kind of power adapter. So आपका जो access point है वो कहाँ से power लेगा? Switch से लेगा. But this switch port must be a PoE switch. If this switch does not support PoE, this access point will not get power from this switch. Why? Because PoE is required. और जो PoE है मीन्स ये जो LAN केबल है, इसी LAN केबल से आपका ये जो एक्सेस पॉइंट है पावर सप्लाई एक्सेस कर लेगा. सो दिस द PoE. अब ऐसा भी नहीं है गाइस कि if you have, let's say, in your company you have 20 access point and you have a switch, and this switch is a, let's say, this is a 24 port switch. And what do you think, if you connect all 20 access point in this switch, the all 20 access point will work or not? Answer is again no. Again depend on your switch. ध्यान रखना, जब भी हम कोई स्विच परचेस करते हैं, पीओई स्विच करते हैं ना, तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके नेटवर्क में कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको उन स्विच के थ्रू पावर सप्लाई देनी है. मैं एक एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा आपके साथ. दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी है, पावर ग्रिड, आई थिंक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है. वहां पे उनका पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन करना था. मतलब उनका जो ऑफिस था वो एक नया ऑफिस वहां पे करना था, और वहां पे मोस्टली जो कम्युनिकेशन था वो वायरलेस के थ्रू था. तो उन्होंने 20 एक्सेस पॉइंट लगा रखे थे. अब वहां पे एक स्विच लगाया हुआ था और उन्होंने सारे एक्सेस पॉइंट उसी स्विच से टर्मिनेट किया हुआ था. द प्रॉब्लम इज ऑन in 20 access point only 6 or 7 access point is
working, remaining are down. So what is the issue? तो मैं वहां पे गया, तो सबसे पहले मैंने देखा जो स्विच उन्होंने लिया हुआ था, उस स्विच के जो पीओई, जो पावर सप्लाई, जो एक्चुअल में जो सप्लाई जो कर सकता है मैक्सिमम, वो कितना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें था 500 समथिंग और 600 समथिंग वॉट का कुछ था। क्योंकि जो भी चीज आप देखोगे दैट इट विल ऑलवेज इन डेटा शीट, ध्यान रखना। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिवाइस, यू नीड अ डेटा शीट। आप गूगल करिए, विल गेट द डेटा शीट। तो डेटा शीट मैंने डाउनलोड किया एंड मैंने उसका मैक्सिमम थ्रूपुट चेक किया कि व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑन पीओई। आई थिंक वो 600 मेगाहर्ट्ज था और 6 गीगाहर्ट्ज था, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट इट्स अ 2 or 3 years बैक अगो। सो उनके पास डिवाइसेस कितने थे? 20 डिवाइसेस थे। तो फिर मैंने देखा कि जो एक्सेस पॉइंट था, उस एक्सेस पॉइंट का पावर कंजप्शन कितना था? वो था 60 मेगाहर्ट्ज का। और आई थिंक ये 2 और 600 मैंने ज्यादा बता दिया, लेट्स से इट्स मे बी इट्स 200 समथिंग, 240 मेगाहर्ट्ज में भी था, इतना स्पीड था उसका, मतलब पावर सप्लाई कंजप्शन था। तो अगर मेरा एक एक्सेस पॉइंट 60 मेगाहर्ट्ज पावर कंजप्शन करता है और मेरे स्विच का जो थ्रूपुट है वो 240 पावर सप्लाई का है, तो डिवाइड कर लो, 4 मैक्सिमम डिवाइस यू कैन कनेक्ट। आई थिंक वो मुझे एक्चुअल वैल्यू याद नहीं है, बट 4 5 6 डिवाइस ही चल रहे थे उनके। व्हाई? बिकॉज जितना थ्रूपुट आपके स्विच का था उतना थ्रूपुट आपका जो आपके एक्सेस पॉइंट उनका था ही नहीं। एक्सेस पॉइंट 60 मेगाहर्ट्ज के थे। अब आपका जो कंजप्शन था वो 6.240 था, तो मैक्सिमम कितने डिवाइस चला सकते हो? 4 डिवाइस चला सकते हो। तो मैंने क्या बोला, यू जस्ट बाय अ न्यू स्विच और रिप्लेस योर स्विच विथ हाई पावर सप्लाई, और यू कैन टेक 2 स्विच। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 स्विचेस लिए हाई पावर सप्लाई के, और 20 के 26 जब उनको कनेक्ट किया चल गया। गाइस, यही छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं होती है जब हम वर्किंग करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं सीसीएनए सीखने के बाद या सीसीएनए सीखने के बाद, ये चीजें वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें आती हैं। तो आपको पीओई का इसलिए मैंने थोड़ा सा एक डेमो बताया कि ये चीजें मैंने भी अपने टाइम पे फेस करी हुई हैं। हालांकि मेरे को भी एक दिन लग गया था पूरा ट्रबल शूट करने में कि हो क्या रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है। फिर मेरे को कहीं से मुझे भी आउटपुट मिला और से इनपुट मिला कि भाई ये काम करो, एक बार चेक कर लो कि जो स्विच का जो पावर सप्लाई है उतना हैवी कि नहीं है। मैंने कहा ये भी तो पॉइंट हो सकता है, और वही पॉइंट निकला। जब मैंने हायर एंड के स्विचेस लगा दिए चल गया। तो गाइस व्हाट आई एम सेइंग, ये सिर्फ क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होती हैं आने वाले टाइम पे जब हम नेटवर्किंग सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पीओई। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम लेयर आर्किटेक्चर मॉडल। इन networking we have two type of architecture model. One is 2-tier architecture, one is 3-tier architecture. In 2-tier architecture we have uh, two layers in this case. One is distribution layer and one is core layer, oh sorry, access layer. In 2-tier we'll see in later on definitely कि distribution layer क्या होते हैं, access layer क्या होते हैं. Actually this is a kind of network architecture model, right? And in 3-tier architecture model we have three layers, sorry. One is core layer, second is distribution layer, and third is access layer. This 3 layer we have in 3-tier architecture. And most of the small company, not only all, depend on your requirement. Guys, keep in mind always, everything depend on your requirement. ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें यूज होती हैं। डिपेंड ऑलवेज ऑन योर रिक्वायरमेंट। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आती तब तक वो चीज आप यूज नहीं करते हैं। तो एक छोटी आर्किटेक्ट, अगर हम एक नेटवर्क डिजाइन की बात करें, छोटी सी कंपनी है, वहां पे मुझे एक नेटवर्क को डिजाइन करना है, तो वी कैन ऑलवेज प्रिफर्ड एज 3-tier आर्किटेक्चर मॉडल। और जो हमारा 2-tier आर्किटेक्चर मॉडल होता है वो बेसिकली हम डेटा सेंटर में करते हैं। डेफिनेटली जब हम बात करेंगे इसके बारे में तब डिटेल में बताऊंगा कहाँ पे 2-tier आर्किटेक्चर मॉडल करते हैं, कहाँ पे 3-tier। 2-tier में हमारे पास कोर लेयर में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, विल सी इन डिटेल, राइट
Guys, these are the actually are theoretical concepts, all the things, right? Then we'll see the spine leaf concept, WAN, small office, home office, on premises, cloud. So these are the guys types of network devices and types of some architectures. तो ये हमारा सारा नेटवर्किंग फंडामेंटल के अंदर आता है. देन ये आईपी एड्रेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आईपी एड्रेस हम पढ़ेंगे. ठीक है. आईपी एड्रेस के अंदर ये तीन टाइप के एड्रेसेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट. विल सी what is unicast, what is multicast, what is broadcast, right? Unicast means one to one communication, multicast mean one to many, broadcast mean one to all. So आपके जो आईपी पैकेट्स होते हैं, that goes to in different sections, three different sections: unicast, multicast and broadcast. We'll see definitely in detail. Then we'll discuss about the NET of IP addressing, classes of IP addresses, subnetting we'll see, and I'm adding here one more thing, supernetting. This is not part of CCNA, but I will tell you why, what is supernetting, right? Then IP connectivity, right? In the IP connectivity, we'll learn routing protocols. In this section, we will see the routing, core routing concept. In routing, we will see three types of routing, guys. One is static routing, second is default routing, and third is dynamic routing. We have three types of routing, guys. One is static, default, and dynamic. In static, we will learn host routing as well. In default routing, we will learn floating static routing. So what is floating static routing? So just telling you, let me go to the paint. Let's say you have one router, right? And you are connected with two ISPs. Or let's say, take an example, one ISP we have. And this is the LAN network. So this is the router. This is the switch. And in this switch, we have different computers are connected, right? Now let's example, in the internet we have some servers, let's say google.com, let's say cisco.com. We have different websites are there, right? So users are communicating with these websites without any problem. But let example, if this internet goes down, what happen? Your entire LAN network will impact. आपके LAN के यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा. So in that case, what I will do, you will add one more ISP for the redundancy. And there is some two requirement in my company. Let's say this is my ISP1 and this is my ISP2. In ISP1, let's say this is a 100 Mbps speed of this link, and this is like, guys, a 20 Mbps link. And this link I'm using for the backup purpose only. And this is my primary link. My requirement is any user want to go to internet, router will forward this traffic toward ISP1 always. But if my ISP goes down, then your router will switch the packet toward ISP2. This is concept of floating static routing. Floating means if the primary link goes down, then backup link will be used. And again, my primary link will come back again. Then again, router will use the primary link. This is the first requirement in your company. So how you can deal, you can kind of thing. अब कैसे deal करोगे? So this is concept of floating static routing. We'll see how to configure floating static routing. And second is, my company don't want to use the primary backup concept. Let's say both the link as 100 Mbps. And I want to use both the link. We can use as well. And I want to perform the load balancing. We'll see. Both the things we will learn.
how to use both the link to forward the traffic, or how to use one of the link as a primary. We'll see definitely in default routing. So this is about default routing. So in the routing, we'll see static routing. In the static routing, we'll see the host routing as well. Then we'll see the default routing, and then we'll learn the dynamic routing. So in dynamic routing, we have three types of routing, guys. I will not go in deep, but get taken some overview. In dynamic routing, we have, guys, majorly three protocols. One is AIGRP, one is OSPF, and second is third is BGP. Guys, these are the main protocols. But if I talking about real time implementation, these two protocol only use. AIGRP we don't use, but we'll learn how to configure AIGRP. But why AIGRP don't use? Because, guys, AIGRP is a Cisco proprietary protocol. It's a Cisco protocol. It is a Cisco protocol. Now, and today's company, guys, all the devices are multi-vendor. Let's say in your company, one is router is Cisco, and another router is, let's say, Juniper. So in Cisco router, you can enable the AIGRP, but in Juniper device, AIGRP will not work. Why? Because AIGRP Cisco proprietary protocol. We will learn actually in 2013. Maybe let me check the year as well. In 2013, maybe Cisco announced the AIGRP is open standard. Cisco announced it is an open standard protocol and multi-vendor can use this protocol in their devices. But Cisco does not open all the features on AIGRP. So that's why other vendor does not trust on AIGRP. So that's why they did not run AIGRP in their devices. So that's why we always configure a protocol that is an open standard. So OSPF we will learn, BGP as well we will learn. OSPF, guys, is a part of CCNA, but BGP is a part of CCNB. If you want to learn advanced networking concepts, advanced routing concepts, then you have to enroll in CCNA, then you will learn BGP. But in CCNA, we will learn only OSPF. We will little bit learn about AIGRP as well, no worry, in CCNA. But CCNA, in the CCNA syllabus, there is AIGRP is not in your syllabus. If you go to the official syllabus content, you will not see any kind of AIGRP related stuff. But I will teach you what is AIGRP. Maybe it will take only 2 to 3 days. No worry about it. So we'll learn about AIGRP as well, and then we'll learn over the OSPF. But in BGP, again, guys, BGP is not part of your CCNA syllabus, but I will teach you a basic of BGP just for your knowledge purpose. If someone asks you in the interview what is a BGP, just you can tell him what is BGP and why we use a BGP. We'll not do any kind of configuration light stuff here. We'll learn a theoretical concept in BGP, right? So this is all about your dynamic routing, right? Then after we will learn in the routing, when we learn about routing, like any static routing, dynamic routing, whatever, we learn this kind of routing related stuff. Let's say what is the prefix, what is the network mask, what is the next hop, what is the administrative distance, what is the metric, what is the gateway of last resort. This is all about the stuff about your routing. ये भी हम लोग पढ़ेंगे. अब आपका जो राउटर है पैकेट को फॉरवर्ड करता है. लेट्स से दिस इज द राउटर. So router, whenever receive any kind of traffic, any kind of packet, so router will forward the packet. Forward the packet. So whenever router will forward the packet, he will check these three things: longest prefix match, administrative distance, and router protocol metric. Based on these three criteria, a router will decide to forward the packet. And what are these things, guys? We will learn in routing section. So this is all about your routing concept. Then we'll see the in routing section we already discussed about the we'll see the default route, we'll see the network route, we'll see the
host route, we'll see the floating static route. In this kind of thing we'll see. Then after we'll see the OSPF. This is the static routing, guys, right? And this is about your OSPF. I'm just little bit, यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि आप ये 4-5 ही कंटेंट कवर करेंगे. We'll go in deep in OSPF. ठीक है. सो यहाँ पे हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. नेबर एडजेसेंसी क्या होती है, नेटवर्क में OSPF के कितने टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क. वन इज ब्रॉडकास्ट, one is point to point. These are two network type in OSPF. We'll see definitely. What is DRBDR? What is a router? So we will see in deep of OSPF. OSPF packet, we will learn how many packets, which type of packets OSPF we have. What is the OSPF neighbor state? We'll see each and everything in OSPF section. Then after we will switch in IP service related stuff, where we will configure the netting. What is the different type of net? Net means it's a network address translation. Net, when we use the net, when the traffic is coming from LAN and when going to WAN, जब ट्रैफिक हमारा LAN से WAN की तरफ जाता है, then time we will configure the net, guys. Net basically is a technique or is a feature where your private IP will translate into public IP. Why translation is required, we will see it in detail in net. In this net we will see different types of net. One is static net, second is dynamic net, and third is, guys, PAT. So we will learn all these types of net. और एक और नेट मैं आपको सिखाऊंगा जो है स्टैटिक पैट. दिस इज पार्ट ऑफ नॉट CCNA, गाइस. फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टैटिक पैट. स्टैटिक पैट CCNA में कोई नहीं सिखाता आपको, बट आई विल टेल यू. क्योंकि गाइस ऐसे छोटे छोटे चीजें होती हैं जो आपको कभी कॉन्फ़िगर करने के लिए मिल जाए तो आप कैसे करोगे. सो व्हेन आई लर्न CCNA एंड डन माय टाइम एंड आई फेस लॉट्स ऑफ थिंग्स, तब मुझे पता लगा कि ट्रेनिंग करने के बाद जब हम काम करने जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं. कुछ चीजें मेरे अंदर भी कमी रही थी कि मैंने भी कुछ चीजें अपनी एंड पे प्रैक्टिस रह गया था, या फिर हमारे कह लो कि मेरे रिवीजन थोड़े से नहीं रहे थे. लेकिन जब एक बार ठोकर खाया था, मैं कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा. मुझे अपने एक टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि नेटवर्किंग का मुझे एन भी नहीं मालूम था और मुझे लगता भी था कि मैं नेटवर्किंग सीख पाऊंगा. बी ऑनेस्ट, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने नेटवर्किंग के बारे में देखा सुना, मैं वहां से उठ के चला गया था. नेटवर्किंग मेरे लिए नहीं है, मैं सर्वर इंजीनियर ही ठीक हूं. बट डेफिनेटली जब मैंने नेटवर्किंग किया, फिर मेरे अंदर से आवाज आई यार नेटवर्किंग मेरे लिए ही है. और वो एक वर्ड था मेरे अंदर से निकला था कि मैं नेटवर्किंग नहीं सीख सकता. आज का दिन है कि मैं नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ. दैट्स व्हाई गाइस. तो मैं यही कह रहा हूँ कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिसेस, रिविजन्स, और कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स आपके साथ हो जाते हैं जो आपको अंदर तक चोट कर जाते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा फिर आगे चल के. ठीक है. सो ये सारी चीजें जब कुछ हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशन एज वेल. तो नेट हम डिस्कस करेंगे. नेट के डिफरेंट टाइप है और इसमें आपको स्टैटिक पैट भी पढ़ाऊंगा मैं. ठीक है. वाई वी रिक्वायर्ड स्टैटिक पैट, कब जरूरत पड़ेगी, विल डेफिनेटली टेल यू इन नेटवर्किंग नेट सेक्शन. उसके बाद हम DHCP देखेंगे, NTP देखेंगे. NTP मींस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता हमारा ये. NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इट्स अ टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल, गाइस. राइट. अब मान के चलो कि आपके कंपनी में 50 राउटर लगे हुए हैं, 50 सर्वर लगे हुए हैं. इफ यू हैव a 50 routers in your network, 300 servers in your network, let's say 400 switches in your network, let's say 1000 switches in your network. So सभी में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे टाइम कॉन्फ़िगर, फायरवॉल भी होंगे, टाइम कॉन्फ़िगर करना होगा. अब टाइम कॉन्फ़िगर आप मैनुअल करने लग जाएं, कितना टाइम लगा दोगे आप सिर्फ IP टाइम. और अगर आप मैनुअल टाइम कराओगे तो आपको एक एक सेकंड भी आपको मैनेज करना पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल ना एक एक सेकंड मैच कराना इतने सारे डिवाइसेस में. तो हम क्या करते हैं, वी विल कॉन्फ़िगर द NTP. We will configure one NTP server, and all the client will synchronize the time from this server, and this server will synchronize the time from the internet. क्या फ्लो रहेगा,
इसको देखो, एनटीबी को डिजाइन करना भी एक अपने आप में आर्ट है. एनटीबी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट टू डिप्लॉयमेंट. ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया चला दिया. तब भी आपके सेकेंड, और उसमें देखो जहां पे कॉल सेंटर जैसी चीजें होती है ना, वहां पे टाइम का बहुत मैटर करता है. ठीक है, कॉल सेंटर में क्या होता है कि जो एजेंट ने कॉल किया, कितने टाइम पे कितने बजे किया, वो एक रिपोर्ट निकालना होता है. अब ध्यान रखना, जो कंप्यूटर जो सिस्टम में बंदा बैठ के कॉल ले रहा है, उसका टाइम जोन डिफरेंट है, और आपका जो राउटर के थ्रू जो ट्रैफिक जा रहा है उसका टाइम जोन डिफरेंट है. तो प्रॉब्लम आ जाएगा. ट्रबल शूटिंग में सबसे बड़ा इशू टाइम सिंक्रोनाइजेशन. अगर आपका टाइम का इशू हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ट्रबल शूटिंग में आएगी. क्योंकि लेट्स से दिस इज द राउटर, राइट, और इस राउटर में कोई प्रॉब्लम आया तो आप क्या करेंगे? आप अपने एंड पे ट्रबल शूट करेंगे. बट एवरीवन इज नॉट परफेक्ट ना. मैं भी कई बार फंस जाता हूँ चीजों में. वी ऑल्सो टेक इंजीनियर, बट कई बार हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें सिस्को का भी हमें हेल्प लेना पड़ जाता है. तो हम सिस्को को कॉल लॉग करवाएंगे, एंड सिस्को विल टेल यू प्लीज शेयर द लॉग्स. जब वो एरर आया था, वो लॉग्स का टाइम वो मुझे शेयर कीजिए. तो उस लॉग के अंदर क्या होगा? टाइम होगा. तो टाइम गलत हो जाएगा तो फिर ट्रबल शूटिंग, आपका जो लॉग्स आया था वो कितने टाइम पे आया था, कितने बजे आया था, वो टाइम ड्यूरेशन आपको होना चाहिए ना. So that time is very important for the troubleshooting. So that time we will configure the NTP. We'll learn how to configure the NTP. See, definitely. Right. Then after we'll learn something about SSH, Telnet, SNMP. This is IP related stuff. So this is the kind of thing. Quality of services. Quality of services, guys, is the kind of a prioritize of your traffic. QoS. And in CCNA, we will learn only the theoretical concept, not practical, guys. Practical only we will see on CCNP. QS means quality of services. Your the traffic is, let's say this is your firewall or this is a router, whatever. When the router will receive two packets, what is data packet, what is voice packet. So as per the rule, can you tell me anyone what is the priority of the traffic? Means a router will receive the packet, one is data or one is voice. What traffic should be first forward by the router? Can anyone tell me? Data traffic or the voice traffic? Data traffic. Data, sir. नो, 100% रॉन्ग आंसर. वॉइस ट्रैफिक. देखो गाइस, एक बात बताओ, डेटा ट्रैफिक क्या है? वो ट्रैफिक है जब आप एक ब्राउजिंग एक्सेस कर रहे हो, एक फाइल शेयर कर रहे हो. लेकिन वॉइस ट्रैफिक क्या है? वो ऐसा ट्रैफिक, लेट्स से आपका एक मैनेजमेंट का बंदा, आपका जो बॉस है, सीईओ है, वो कॉल पे है किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ और बिजनेस डीलिंग चल रही है, और ड्यूरिंग दैट टाइम कोई वॉइस में ब्रेकेज आएगा तो क्या होगा? नेटवर्क इंजीनियर को बुलाओ, इधर कमरे में बुलाओ, और फिर जो डांट पड़ेगी सो अलग. कई लोगों की तो नौकरी इससे चली जाती है. तो गाइस ध्यान रखना, वॉइस ट्रैफिक इज ऑलवेज प्रायोरिटी. बिकॉज वॉइस ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक होती है जहां पे आपका कोई ना कोई मीटिंग चल रहा होता है, कोई ना कोई एजेंट कॉल पे होता है, दे आर डूइंग द बिजनेस ना. तो अगर एक राउटर ने कोई ट्रैफिक रिसीव किया, लेट्स से मैं एक यूजर हूं और आप भी एक यूजर हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग द ब्राउजिंग एंड यू आर डूइंग सम कॉलिंग. अब राउटर, हमारे दोनों के ट्रैफिक को राउटर ने रिसीव किया, तो राउटर मेरे ट्रैफिक को प्रायोरिटी देगा या आपके ट्रैफिक को? आपके प्रायोरिटी को, क्योंकि आप कॉलिंग कर रहे हैं गाइस. So that time we will configure the quality of services kind of thing in routers, firewalls. That time your voice traffic will priority. We'll learn about quality of services in CCNP, but in that little bit basic information we will take in CCN as well, right? Not confusion related stuff, guys. Only the theoretical concepts, right? So this is all about your quality of services. We will learn the TFTP. TFTP is a guys a kind of a backup related stuff. TFTP, Travel File Transfer Protocol, that is used for the backup, restore, and firmware upgradation. Let's say your router OS is outdated and you want to upgrade your iOS. So where you will download the iOS, where you will upload the iOS. So TFTP is a server. We'll see in the practical in the syllabus how to configure. So this is all about your CCNA, and then some we will learn about the security concept uh like SSH, ACL, right, and STP protection, port security.
This is kind of thing we learn in security fundamentals, right? Layer 2 security, DSCP snooping, dynamic ARP inspection, port security. These all are the basic networking security we'll learn in security section, fundamental, right? In this section, we have some theoretical concepts and some practical as well, right? If I talking about a VPN, so VPN, guys, it's a theoretical concept in CCNA, but in CCNP, we will configure the VPNs. We have different types of VPN. Let's say one is site to site VPN, one is GRE VPN, DM VPN. This is the VPN we'll learn in CCNP. It is, it will start from basic to advanced. आपको मैं आपको क्योंकि आई एम ऑलरेडी गाइज आई एम ऑलरेडी मींस एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, so I have much knowledge about security, so that's why we'll go in deep in VPN at the security level, जितना हम deep जा सकते हैं, right? So we'll or and that's a part of CCNP, guys. We will see the theoretical as well as configuration, but in CCNA, VPN is only a theoretical concept, not a practical concept, right? So this is all about, guys, your syllabus, and I will share this document, guys, and something we'll learn about the programmability, means automation. And again, CCNA, automation is a theoretical concept, it's not a practical. पाइथन भी रहेगा सर इसमें, पाइथन वायरलेस और पाइथन रहेगा, वायरलेस पाइथन रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। यहाँ पे वायरलेस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वायरलेस वाईफाई ये लिखा ना, ये भेज देंगे सर पीडीएफ इसका। डेफिनेटली डियर, ये आप ही लोगों के लिए, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? आई विल शेयर यू दिस, गाइस। ओके सर, ठीक है, जो भी चीज आप सीखोगे दे विल लर्न, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। ठीक है, अभी मैं अपनी टीम को शेयर कर दूंगा, दे विल शेयर विद यू ऑल ऑफ यू गाइस, वन टू वन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। ठीक है, अच्छा, सीसीएनपी की हम बात करें तो सीसीएनपी के अंदर मैंने देखो एक्चुअली में जो हम सिलेबस कवर करेंगे दैट इज ऑल अबाउट योर ऑफिशियल कंटेंट। ठीक है, सो सीसीएनपी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इफ यू वांट टू लर्न और इफ यू वांट टू मेक अ कैरियर इन नेटवर्किंग इन एडवांस। आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूं, सिंपल से समझ लेना कि आप अगर सीसीएनए करते हैं एंड आफ्टर सीसीएनए गोइंग फॉर द जॉब, मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब नहीं लगेगी, चांसेस थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि एवरी 10 में से 8 लोग सीसीएनए करके बैठे हुए हैं, एंड सीसीएनए इज अ बेसिक नेटवर्किंग। आज से मैं 10 साल पहले जाऊं कि अगर आपने सीसीएनए किया होता, आपकी वाई वाई होती थी, अरे भाई सीसीएनए किया हुआ है, इसको जॉब दो यार, इसकी जरूरत है हमारी कंपनी में। और आज के टाइम में सीसीएनए किया हुआ है, बस वर्ड में फर्क है। क्योंकि गाइस आज की डेट में ना आप नेटवर्क में और कंपनी में सरवाइव तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव द मल्टीपल स्किल्स इन योर सीवी। अब मैं सीवी उठाऊंगा और सीवी में देखूंगा इस चार ने सीसीएनए किया हुआ है, और एक सीवी उठाऊंगा, दोनों फ्रेशर्स हैं गाइस, एक फ्रेशर है एक और फ्रेशर है, दोनों फ्रेशर्स जब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और रिक्वायरमेंट भी फ्रेशर की ही थी। फ्रेशर हम क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि इनके पास नॉलेज तो है बट इन्होंने किसी कंपनी में काम नहीं किया, उसको हम फ्रेशर्स बोलते हैं। और एक फ्रेशर उसे भी बोलते हैं जिसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है बट वो भी फ्रेशर है। क्यों मालूम है? क्योंकि 5 साल उसने सीसीएनए करने के बाद उसने एक ही कंपनी में लगा दिया, उसकी नॉलेज सीसीएनए लेवल की है, और वो 5 साल के बाद जॉब ढूंढने जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर है गाइस, नॉलेज के नाम पे वो फ्रेशर है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, 5-6 साल मैंने भी अपने लाइफ के बहुत खराब किए थे, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करके। और एक जो सबसे जो डेंजर चीज होती है दैट्स अ कंफर्ट जोन। आपको अगर ऐसी कंपनी मिल जाए ना जहां पे आपकी 9 to 6 जॉब है और कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कर रहे हो, वो कंपनी अब छोड़ देना, कंटिन्यू मत करना उस कंपनी को। 2-4-6 महीने करना, सैलरी उठाना, अपने ऊपर काम करना और छोड़ देना। क्योंकि ऐसी कंपनी में अगर मैं अभी आपको एग्जाम देने लग जाऊं ना, एग्जाम्पल देने लग जाऊं, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल एक चीज बता रहा हूं, एक आपको आईना बता रहा हूं। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया था जब मैं उनके अंडर में काम करता था। आज की डेट में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे अंडर में काम करते हैं, लेकिन उनके लेवल से मैं काफी ऊपर हूं। कभी उनके साथ में पूछ के उसका काम करता था, लेकिन चीजें स्क्वायर किया। और उन्होंने जो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अच्छा पैसा सैलरी मिलता है, उनको कहता है पैसे तो आ रहे हैं ना महीने के, और करना क्या, 9 to 6 जॉब करनी, आओ यूट्यूब देखो चले जाओ। और उसके बाद
जब वो कंपनी बंद हो जाएगी या आप तंग आ जाओगे या कंपनी बंद ही हो, क्योंकि ऐसी कंपनी बंद होने के बाद ही छोड़े जाते हैं। और ऐसी कंपनी मैंने भी छोड़ी थी जब कंपनी बंद हो गई थी, उसके बाद मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था। डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर आप बोलोगे यार 5-6 साल काम कर लिए, इतना टाइम, इतना सैलरी मैंने दे लिया और आपकी सैलरी हर महीने बढ़ रही है, अरे यार इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है। आपकी कंपनी में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कह रहे हो कि भाई मैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम टेकिंग 10 लाख एंड आई एम गोइंग टू अनदर कंपनी एंड मैं वहां पे कह रहा हूँ कि मुझे 15 लाख का पैकेज चाहिए। कंपनी ने 15 लाख के हिसाब से आपसे 4 चीजें पूछ लिया, बता नहीं पाए। कह रहे कि नॉलेज तो आपकी 5 लाख की है, सैलरी अब 10 लाख आपकी कंपनी दे क्यों रही है। ऐसे सवाल आते होते हैं। तो दैट्स वाई गाइज मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर नेटवर्किंग सीखने निकले या किसी भी फील्ड में है, चाहे आप डांसिंग ही कर रहे हैं, चाहे आप अकाउंटिंग में है, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना है, आपको एवरी ईयर अपने आप के स्किल्स को एनहेंस करना है, देन यू विल गेट सर्वाइव गाइज। और मल्टीपल स्किल्स का बंदा ही नेटवर्क में सर्वाइव कर पाता है। आपको जॉब मांगना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लोगों के आगे बोलना पड़ेगा मेरे को जॉब हो तो बता दियो भाई, भाई जॉब हो तो बता दियो भाई। और एक टाइम आप उसको अपने घर में, आपके कोई इन्विटेशन है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, उसके इनवाइट के लिए आप उसको फोन कर रहे होगे, वो कहेगा यार ये बंदा काम के लिए, जॉब मांगने के लिए फोन कर रहा है, वो फोन आपका उठाएगा नहीं। मेरे साथ हुआ है गाइस, ये सारी चीजें मैं अपना एग्जांपल भी दे रहा हूँ। 5-6 साल मैंने जो अपने खराब किए थे, आंसू निकल गए थे जब जॉब नहीं मिल रही थी तो। और अब जब शादीशुदा होते हो, बच्चे होते हैं, तो आपको मालूम है सब चीजें क्या होती हैं। तो गाइस इसलिए देखो, जो कुंवारे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, अभी है लाइफ को सेटअप करने के लिए। मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट है गाइस, मैं ऑल ओवर, मैं इंटरनेशनल पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पढ़ाता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, पिछले 8-7 साल से मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं गाइस, उनकी एज 40-45 हो चुके हैं, अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कंपनी उनको तंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं, मना कर देते हैं। गाइस अब मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाई ये प्रैक्टिकल है, आज नहीं समझोगे तो आगे जाके समझोगे। एक टाइम के बाद मेरे को भी समझ में आ गई थी, तो फिर मैंने उस दिन का देना और आज का देना है, मैं हमेशा डे वन अपने लिए अपने को इनहेंस करता रहता हूँ और सबको यही कहता हूँ कि इनहेंस करो। मेरे आप कोई भी स्टूडेंट से पूछ के देख लेना, वो यही बोलेंगे सर हमेशा यही बातें बोलते रहते हैं। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि मैंने चीजें झेली हैं, दैट्स व्हाई। चलो अगेन कम टू द पॉइंट गाइस। सो सीसीएनए करने के बाद, अच्छा मैं बोल रहा था फ्रेशर्स की, राइट। सो एक फ्रेशर है अमित और एक फ्रेशर है सुमित, दोनों फ्रेशर्स हैं, बोथ आर फ्रेशर्स। बट अमित ने सीसीएनए किया और सुमित ने भी सीसीएनए किया। सुमित ने कहा यार चलो यार सीसीएनपी भी कर लेते हैं, चलो यार कुछ और चीजें भी अपने एडोप्ट कर लेते हैं, क्लाउड भी कर लिया, कुछ फायरवॉल कर लिया। दोनों ने कहीं कंपनी में जॉब नहीं किया, दे ऑल आर फ्रेशर्स आफ्टर 12th करने, सॉरी आफ्टर ग्रेजुएशन करने, उन्होंने ये चीजें पे फोकस करना शुरू कर दिया और साइड बाय साइड कहीं पे कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कॉल सेंटर में, कहीं कुछ। मैंने भी ऐसे कॉल सेंटर में 3-4 साल मैंने जॉब किया है। उसके बाद मैंने ट्राई किया कहीं पे फ्रेशर 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 नहीं, बहुत सी कंपनी कहती है कि फ्रेशर हमें नहीं चाहिए, बट ऐसा मत सोचना कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती, ये गलत मिथ है। अगर आपके पास नॉलेज है, फ्रेशर्स का मतलब है आपके कहीं काम नहीं किया, वो फ्रेशर है। नॉलेज अगर आपके पास है, कोई कंपनी आपको फ्रेशर नहीं आपको ले लेगी जॉब के लिए। ध्यान रखना, फ्रेशर के 2 मीनिंग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। एक 5 साल से काम करने वाला भी फ्रेशर कहलाता है, जिसने काम नहीं किया वो भी फ्रेशर कहलाता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, ठीक है। तो सीसीए ने किया, इसने अमित ने और सुमित ने सीसीए ने सीसीएन पीएन और कुछ और चीजें कर ली। अब दोनों चले गए कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए। अब सामने इंटरव्यू ने देखा कि हमें तो भाई बेसिक नेटवर्किंग के लिए बंदा ही चाहिए था, थोड़ा नॉक टीम में हमें एक बंदा चाहिए जो कि थोड़ा बहुत चीजों को देख ले, नेटवर्क वगैरह समझता हूँ, हमें बेसिक नेटवर्किंग चाहिए। उन्होंने जेडी में डाला हुआ था बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड नो सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, उन्होंने ये भी डाल दिया। दोनों चले गए, लेकिन सुमित सिलेक्ट हो गया, अमित नहीं हुआ। अमित कहेगा भाई मैंने भी तो सीसी ने तेरे साथ किया था, क्यों नहीं लिया मेरे को, मैंने भी तो सही आंसर दिए थे जो उन्होंने पूछा। बट सीवी में इसकी 4 चीजें और एड ऑन थी। सामने वाले कंपनी को मालूम है कि इसको अगर आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं किसी और टीम में डालूंगा ये काम कर पाएगा, ये और चीजें भी देख लेगा, मेरे फायरवॉल भी देख लेगा, ये मेरे नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग भी देख लेगा, और भी जो अदर टीम उनके साथ भी काम कर लेगा। प्लीज हायर सीसी सुमित, ये फैक्ट है गाइज, ये फैक्ट है। मैं आपको अपना एक ऐसा स्किल बताऊंगा ना जो मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने वो चीज अचीव करी, वो दिन मुझे आज तक याद है। मैं छोटी मोटी कंपनी में काम करता, छोटी मोटी कंपनी में काम करना फायदा होता है क्योंकि उसमें आपको हर चीज में काम करने के लिए मिलेगा, सब चीजों में सीखोगे आप। तो मैं जब एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गया था, मेरी कंपनी में था ना कि एक कंपनी बंद हो गई थी या फिर वहां पे मैनेजमेंट से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने रिजाइन मार दिया। और रिजाइन मारने के बाद मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे घर में मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है, जॉब छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं 15 दिन तक मैंने सिर्फ इंटरव्यू तैयारी करी, 15 दिन पढ़ा 8-8 9-9 घंटे,
कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मुझे क्रैक करना है। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहां पे 40 लोग थे गाइस, 40 लोग थे टोटल, मेरे को लेके 40-41 लोग थे, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। जब एचआर को पूछा कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने सिर्फ कहा 1। मैं तो वहीं होपलेस हो गया, क्योंकि जो बंदे आए थे वो एचसीएल से भी थे, कुछ विप्रो से भी थे, कुछ छोटे मोटे अदर कंपनी से थे। मैंने कहा मेरा नहीं होगा, मैंने ये सोच के गया था नहीं होगा। लेकिन उन 40 में से 7 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिनमें मैं भी था, और फिर हमें नेक्स्ट राउंड के लिए बोल दिया गया, और कसम खा लिया कि अगली बार जाऊंगा तो सिलेक्ट होके आऊंगा, और मैं होके आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्रेशर्स, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन 1 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने इतनी सारी चीजें सीख ली थी, ट्रेनिंग ले ली थी, कि मैं सीसीएनए भी कर लिया था, मैंने फायरवॉल भी कर ली थी, मेरे को सर्वर भी आता था। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि सर मैंने आपको इसलिए हायर किया है क्योंकि आपके जो सीवी के अंदर जो स्किल्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो आप किसी और कंपनी, हमारे और टीम के साथ भी काम कर सकते हो। ये वर्ड उन्होंने मुझे बोला था, वो वर्ड मुझे आज तक याद है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि हाँ, तब मुझे लगा कि नहीं यार, कंफर्ट जोन कितना खतरनाक होता है। जब वो कंपनी में मैं काम करता हूँ, कंफर्ट जोन ही था। सारी चीजें हम आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे मैं बैड एक्सपीरियंसेस और ऐसे गुड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता लगा। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग एक्सपीरियंस, उनको तो मालूम है सब चीजें, जहां पे एक लेवल पे पहुंचे हुए हो, लेकिन जो बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे हो, उनको कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगेन कम टू द पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, मैंने बताया कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो जब आपके पास एक स्क्वायर स्किल होगा, जब आपके पास लेवल अप स्किल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बात करें सीसीएनपी की। आफ्टर सीसीएनए आप अपने आप को एक लेवल, सीसीएनए आप अपने आप को एक लेवल और लेके जा सकते हो। सीसीएनपी, सीसीएनपी मींस प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं या 2 ट्रैक्स होती हैं। वन इज एनकोर, जैसे मैंने आपको बताया, और वन इज एनआरसी। एनकोर जो है वो आपका एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं गाइस, एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग। और एनआरसी के अंदर आपकी ट्रबल शूटिंग है, कि जो भी प्रोटोकॉल आप सीखते हो, लेट्स से ओएसपीएफ आप सीख रहे हो, वीलैन आप सीख रहे हो, इनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उसको ट्रबल शूट करोगे, कैसे टैकल करोगे, ये सारी चीजें हम लोग इस एनकोर और एनआरसी के अंदर सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़े से एडवांस टॉपिक है एज कम्पेयर टू आपकी सीसीएनए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊं, हालांकि सिलेबस मेरे पास ये वाला है, एनकोर एंड एनआरसी। अब इसके अंदर जो आपके जो टर्म्स है ना, जो ये जो यहाँ पे जो टर्म्स है, वो थोड़े से ऐसे एडवांस है, जो बेसिक्स उनको मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं सिलेबस तो यही फॉलो करूंगा, सीसीएनए वाला, सिस्को का, शॉर्ट सीसीएनए बोल रहे, सीसीएनपी का, एनकोर एंड एनआरसी। ये हमारा एनकोर है, दिस इज योर एनकोर, एंटरप्राइज कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, एंड एनआरसी मतलब एडवांस नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग सर्विसेज, राइट। तो ये 2 हमारे पेपर्स हैं, और ये हमारा अपडेटेड वाला है 1.1 वर्जन वाला, जो अभी लेटेस्ट अगस्त में हमारा रिलीज हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सीसीएनपी का आपका एंटरप्राइज वर्जन है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये फाइल भी मैं आपका शेयर करवा दूंगा, आप चाहो तो नेटवर्क से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे जाके डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। सर इसमें लिनक्स है सर? सॉरी, इसमें आप लिनक्स है सर? लिनक्स है क्या सर इसमें? लिनक्स इज नॉट रिक्वायर्ड यार, सीसीएनए के लिए लिनक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, लिनक्स नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सर, क्वांटिटी वाला नहीं। तो, बोलिए तो बोलिए। एनएमएस मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए ना सर उसको? अगर सर एनएमएस तो मैनेजमेंट करने के लिए तो लिनक्स की फंडामेंटल चीज है सर, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। देखो, ये सब कैसे मैनेज करेंगे मैं कह सर रहा हूँ कि रिमोटली? मैं बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल में हम राउटिंग एंड स्विचिंग करते हैं, दैट इज वर्क ऑन राउटर एंड स्विच राउट। जो हमारा ये जो सीसीएनए सीसीएनपी है, दैट इज वर्क ऑन राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग के लिए हमें कोई भी लिनक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है, लेकिन लिनक्स की कमांड इस पे नहीं चलती है। राउटिंग की अपनी कमांड है, स्विचिंग की अपनी कमांड है। तो आपको इसके लिए नेट, जो आप बोल रहे हो एमएसआर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो, वो हम डिफरेंट मेथड से मैनेज करते हैं। आप राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे, राउटिंग के प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करोगे, उनके अंदर आने वाले ट्रबल शूटिंग करोगे। अब लेट्स से आपके राउटर में कोई ओएसपीएफ का कोई नेबर डाउन हो गया, अब नेबर डाउन हो गया, उसके लिए मैं लिनक्स का क्या यूज है, मेरा कोई भी यूज नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लिनक्स का बिल्कुल यूज नहीं होता, लिनक्स का यूज होता है फॉर द ऑटोमेशन पर्पस। ठीक है, लेकिन हमारी राउटिंग स्विचिंग के लिए हमें कोई लिनक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लिनक्स इज नॉट प्रीरिक्विजिट। अच्छा, क्लियर है आपको डियर? यस और नो, आपको क्लियर है ना जो आपने पूछा? आंसर भी करा करें प्लीज, हाँ पैसे सर, ले लूंगा हाँ आपसे। ओके हाँ सर, ओके सर। चलो ठीक, ठीक है। अब देखो,
मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने इस पहले पे आता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हम लोग क्या क्या सीसीएनपी में सीखेंगे। ठीक है, सीसीएनपी में देखो ये सारे ट्रैक्स मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज के कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंटरप्राइज में हमारे कौन कौन से कोर्स हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सीसीएनपी का पैकेट फ्लो के बारे में। आपका पैकेट कैसे फ्लो होता है, हालांकि सीसीएनए पे भी हम ये चीजें सीखते हैं, बट सीसीएनपी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके चीजें सीखते हैं। सीसीएनए में जैसे हमने आपको सिखाऊंगा कि मैं पैकेट फ्लो, जहां पे मैं आपको आर्प आईसीएमपी कैसे काम करता है वो दिखाऊंगा, लेकिन सीसीएनपी के अंदर अदर इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसके अंदर वो भी देखेंगे। क्योंकि देखो सीसीएनए लेवल पे अगर मैं इतना डीप ड्राइव चला जाऊंगा तो बंदा भाग जाएगा सीसीएनए छोड़ के, अरे इतना सारा चीज होता है कैसे याद होगा। तो सीसीएनए इसलिए बेसिक्स, आपके बेसिक फंडामेंटल किया जाता है, आपका बेस मजबूत बनाया जाता है, देन आफ्टर आप सीसीएनपी के लिए रेडी हो। ठीक है, आपको बता दूं कि सीसीएनए करने के लिए आपको कोई प्रीरिक्विजिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली सीसीएनए में कर सकते हो। बट अगर आप सीसीएनपी करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको सीसीएनए की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव। देखो अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 की फैब 24 फैब, ये भी लिख देता हूं मैं, तब क्या होता था 24 फैब 2020 से पहले क्या होता था कि ये था कि अगर आप सीसीएनए नहीं करते हो पास तो आप सीसीएनपी का एग्जाम आप नहीं दे सकते। आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्रेनिंग तो कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा, उनको पैसे लेने हैं, ट्रेनिंग देनी है दे दिया। लेकिन आप अगर सीसीएनए की सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है और आप सीसीएनए किया आपने, सीसीएनपी की ट्रेनिंग लिया आपने और डायरेक्टली आप सीसीएनपी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो बिफोर 24 फैब 2020, ये पॉसिबल नहीं था गाइस। लेकिन आज की डेट में सीसीएनए एसएसको बोलता है आपने सीसीएनए किया हो ना किया हो, कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो ना हो, डजंट मैटर, आप डायरेक्टली सीसीएनपी का एग्जाम क्रैक दे सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सीसीएनए की ट्रेनिंग ले लेते हैं और सीसीएनपी का एग्जाम, ट्रेनिंग लेकर सीसीएनपी का डायरेक्ट एग्जाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सीसीएनए में भी आपके ऑलमोस्ट $300 के आसपास आपके लगते हैं, वो बच जाता है। अगर आपने सीसीएनपी का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो कोई पागल ही होगा जो बोलेगा सीसीएनए आपने किया है कि नहीं किया है। अगर आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई बोलेगा आपने 5th पास किया कि नहीं किया, 10th पास किया कि नहीं किया। अबे 10th पास नहीं किया तो ग्रेजुएशन कहां से आ गया मेरे पास। तो ये चीज होती है। तो अभी के डेट में आपकी सीसीएनए नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर सीसीएनपी, लेकिन आप सीसीएनए के सर्टिफिकेशन के बिना ही आप डायरेक्टली सीसीएनपी का एग्जाम दे सकते हैं, जो पॉसिबल हुआ आपके फैब 2020 के बाद से। पहले ऐसा नहीं था, चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पैकेट फ्लो के बारे में, राउटर कैसे पैकेट फ्लो करता है, जिसमें मैं आपको लेयर 2 फॉरवर्डिंग, लेयर 3 फॉरवर्डिंग, फिर इसमें मैं आपको स्विचिंग मेथड बताऊंगा। स्विचिंग मेथड में 3 टाइप के स्विचिंग मेथड का, देखो स्विचिंग मेथड का मतलब ये नहीं कि स्विच की, स्विचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो स्विचिंग का मतलब है पैकेट को स्विच करना। स्विचिंग का मतलब ये नहीं स्विच, आपका जो पैकेट को स्विच कौन कर सकता है, एक पैकेट को स्विच आपका राउटर भी कर सकता है, स्विच भी कर सकता है और फायरवॉल भी कर सकता है। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्विचिंग का मतलब क्या है। राउटर के 2 इंटरफेसेस हैं। सो राउटर वन रिसीव वन पैकेट on particular interface and router will forward this packet or switch this packet to on this interface. Let's say it's a gigabit 0x0 interface, it's a gigabit 0x1 interface. Whenever router will receive any packet on this interface, router will switch that packet on this interface. That is called a switching method. Switch matlab receive one interface and forward to another interface. That process called as well switching. ये मत सोचना कि switching is a method, guys. It is perform anyone, router, switch, firewall. I am the router, I am receiving a packet, one interface, I am switch that packet to another interface. That is called a switching. And whenever router is receive any packet, there is 3 types of switching method. We will go in detail when we will about the CCNB. We have 3 types of switching method. One is process switching,
SAF switching, and one of switching we have. ध्यान नहीं आ रहा मेरे को. Let me switching. Okay, yes. कभी कभी दिमाग स्टक हो जाता है. One is process switching. मैं switching method की बात कर रहा हूं. I am talking about switching method. Whenever router will receive any packet, it will switch the packet. There are three methods. One is process switching. Second is fast switching. And third is SAF switching, Cisco Access Forwarding Switching. These are the three methods we use by the router or any layer 3 devices to forward the packet. We learn about this type of switching. What is the difference between these three types of switching methods in this section? Second section. Then we will discuss about some network devices component, and we'll start with switching. मतलब switch से हम start करेंगे. In the first time we will see about the VLAN. We'll learn about VTP. We will learn about STP and advanced STP. Spanning tree protocol. In the STP spanning tree, we'll learn about the RSTP, root guard, VP2 guard, VP2 filter, loop guard. We'll go deep and dive, and we'll see STP security as well. In our CCNP enterprise, we have CCNP security as well. And आपको एक और बता दूं update, new update. In August 2024, in CCNA, Cisco introduced STP security as well. Before August 2024, STP, only basic STP we will learn in CCNA. But after August 2024, STP security also are there. Means you will learn this kind of thing in CCNA as well. But basic level, not in deep advanced level. Right? So this is all about your STP. Then we'll see the MST, DTP, Ether channel. And these are, guys, HSRP, VRRP, DLP. These are gateway redundancy protocol. What is redundancy gateway protocol? Let's discuss about it. Let's say this is internet. This internet connected with my router, and this router is connected with my switch. And here we have some LAN users. And you know, whenever you configure the router, this router will act as a gateway of your these devices. Yes, every devices will use as a gateway of your router. Means whenever the user will go to any other network or any other internet, so obviously forward the traffic with your router, your gateway. And what happen if your router goes down? Means your internet network is down. Your internet means your user will not able to connect with the internet. What happened? So now I will take another router and I will connect these two router and I will configure some redundancy, some gateway redundancy. Gateway redundancy means, you know, whenever you configure any IP address, and we have some gateway related stuff. And gateway is nothing, guys. It is the IP address of your router. Let's say this is the IP address of your router 10.1.1, and router 2 IP address is 10.1.1.2. And in this system, जो भी system है, उस system पे maximum you can configure only one gateway, guys. You can configure only one gateway in your system. So if you configure this physical interface IP address of the router in your gateway, and this router goes down, you have to change your gateway manually again 10.1.2 in this machine. And let's say example, you have a 500 machine in your network, and router 1 goes down, so you have to change all the gateway in all 500 machines, either manually, either DSCP, whatever, but you have to change it. So we have one option, that is gateway redundancy.
In gateway redundancy, we will configure some protocol here like HSRP, VRRP, GLBP, depend on your requirement, guys. Which protocol you will learn, you will use, we'll see definitely in syllabus, in content जब हम ट्रेनिंग देखेंगे. But we will configure one of the protocol. Let's say मैंने HSRP configure कर दिया. When we configure HSRP, so HSRP will provide one virtual IP, and this virtual IP will work as a gateway. So I will configure this all the machine as a virtual IP. Means I will not configure any physical IP of the interface as a gateway. I will configure as a virtual IP as a gateway. How the things will work, we'll definitely see. But this is the gateway redundancy protocol. So how we'll configure, what is the concepts, we'll see. So this is all about your SSRP, VRRP, DLP, gateway redundancy. Then after we will learn IP routing stuff, and we'll learn EIGRP, OSPF, BGP. And guys, EIGRP, OSPF, BGP, but I will teach you RIP protocol as well. Here I did not mention any RIP protocol here, but I will teach you RIP as well. Guys, RIP is not in use in production, guys. But for the fundamental of the routing, how routing RIP is work, that's it. For the learning perspective, for knowledge purpose perspective, I will learn. RIP is not in use production, guys. I again tell you, RIP is obsolete. Is that ये RIP अपने नाम की तरह रेस्ट इन पीस हो चुका है ये. Actually में full form is routing information protocol, but right now I called as RIP, rest in peace. This protocol is rest in peace. But we will learn for the knowledge purpose, nothing else. So we will teach you. I will teach you RIP, OSPF, EIGRP, and BGP. And this is, guys, a advanced level concept. If I talking about OSPF, so we have to take almost 10 to 12 days in OSPF. In EIGRP, at least it will take 7 to 8 days. And BGP, it will also 7 to 8 days. So almost you can say it will take huge of time, 20 to 25 days, or maybe more than that, to cover this routing protocol. Here I'm only mentioning EIGRP, OSPF, BGP, that's it. But in EIGRP, we have different things are there. We'll learn, right? Then after routing, we'll see the network time protocol here as well. We learned network protocol as well here, but we will see some advanced concept, right? Then we will see the syslog, DSCP, AAA. So this is the AAA, guys. It's a centralized authentication method. What is centralized authentication method? What is AAA? Just telling you, जिसको बारे में नहीं मालूम है. मान के चलो, you in your company you have 500 routers. In your company you have a 500 ज्यादा हो गया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं. So let's say 50 routers you have, and let's say 300 switches you have, and 20 firewalls you have. अब इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर्स हैं. We have network engineers. How many network engineers? Let's say 10 है. 10 नेटवर्क इंजीनियर इनको मैनेज करने के लिए है. अब 10 इंजीनियर अगर इन डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे, तो ऑब्वियसली इन 10 यूजर्स के यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको एक एक डिवाइस पे क्रिएट करना पड़ेगा. I will go to each and every 50 routers one by one. I will create 10 users. I will go to 300 switches and I will create this 10 users. After few months, two people और ऐड हो गए हमारे इंजीनियर में, हमारी टीम में 2 ऐड और हो गए. So what I will do, I will go again all the machines, all the devices, all 50 routers, all 300 routers, switches, all 20 firewalls, and I will create these 2 users. And after 10 days, 4 people resign. Then again I will go to each and every machine or devices and I will remove these 4 users. Very lengthy task.
So what I can do, I can use some centralized management system related to authentication. So I will deploy one server that is called as ACS server or as a ICE server. ACS is a kind of access control system. ICE integrated system in service engine, integrated service engine, but both are the same product of Cisco. These are guys two different product, but ACS is not in use production right now because this is a obsolete product. ये हट चुका आज के डेट में है नहीं. So latest product is ICE. So I will configure some AAA kind of thing. Services is a protocol. You can say it's a protocol. It's a services. AAA is a service. So I will configure this service on this server. So let's say this is a server, and this is my ACS server. I'm taking example ACS, and it's provide AAA services. These services, and other than I will go to each and every router to create username password. I will create username password here. मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा यूजर नेम पासवर्ड. मुझे कितने यूजर क्रिएट करने हैं? 10 यूजर क्रिएट करना है. दैट्स इट. और मैं जितने भी मेरे राउटर्स होंगे, जितने भी मेरे स्विचेस होंगे, जितने भी मेरे फायरवॉल्स होंगे, आई विल इंटीग्रेट विद दिस ऑल सर्विसेज, दिस ऑल डिवाइसेस विद दिस एसीएस सर्वर. मैं इस एसीएस सर्वर को इंटीग्रेट कर दूंगा इन मशीनों के साथ, इन डिवाइसेस के साथ एक्चुअल में. सो एनीवन, लेट्स से व यूजर इज अमित, he want to access one router, let's say called router 1, and router 1 IPS 10.1.1.1. So whenever Amit will try to access this router 1, so he will use the username Amit and password, let's say take an example 123. So this username and this password will send by this device through the router. राउटर क्या करेगा? इस यूजर नेम को वेरीफाई करेगा, लेकिन वेरीफाई तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास नहीं है. क्योंकि ये अमित जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो कहां पे क्रिएट करूंगा मैं? इस सर्वर पे. तो राउटर उस यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए कहां भेज देगा? आपके एसीएस सर्वर पे भेज देगा. एंड देन एसीएस सर्वर विल चेक इट्स ऑन डेटाबेस, देयर इज अमित यूजर इज अवेलेबल, द पासवर्ड इज अवेलेबल, इट इज मैच. देन योर एसीएस सर्वर विल एक्नॉलेज, yes, the username and password is okay. Then this router will allow you to log in. Why? Because you are authenticated successfully. But I will not configure any username Amit related on this router. Why? Because I am using ACS server. So ACS is a server that is provide you centralized authentication method. You can as well authorization as well. Means which type of command your Amit want to enter, that you can control as well. क्या कमांड आप चलवाना चाहते हो यूजर से, क्या नहीं चलवाना चाहते हो. मैं चाहता हूं कि कोई यूजर आईपी किसी राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर ना कर पाए, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल ए. बट इट इज द गाइड पार्ट ऑफ सीसीएनपी सिक्योरिटी. इन सीसीएनपी सिक्योरिटी यू विल लर्न deep dive of this, but in this triple A I will teach you the authentication method. बाकी जो ऑथराइजेशन है, अकाउंटिंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीसीएनपी सिक्योरिटी. बट ऑथेंटिकेशन मेथड वाला हम लोग देखेंगे कैसे हम सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, कैसे करेंगे. आई विल डेफिनेटली टीच यू. इसके लिए जो एसीएस सर्वर का जो इमेज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल किस में रहने वाला है, किस में हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे फॉर द प्रैक्टिकल. ठीक है. देन उसके बाद फिर मैं आपके कुछ डाउट्स ले लूंगा. ठीक है. 5 से 7 मिनट और दे दो, विल सी द कवर. तो ये हमारे पास सिलेबस है. सिस्लॉग ट्रिपल ए, सिस्को ए से आपका, यहाँ पे मैं आपको बेसिक फायरवॉल भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक फायरवॉल भी पढ़ाऊंगा सिस्को ए से, जो कि आज की डेट में है नहीं, बट फिर भी आपको फायरवॉल की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या होती है सब चीजें. ठीक है. देन वी विल लर्न टीच यू द डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, सिक्योरिटी अटैक्स किस टाइप के होते हैं. ठीक है. कुछ हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जैसे एमपीपी, कॉप, इसको देखेंगे हम लोग. नेट पैट, स्पैन, आर स्पैन, पिंग में आईसीएमपी, ट्रेस रूट, डीबग, कंडीशनल डीबग. दिस आर गाइस, ये जो ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, दिस इज द ट्रबल शूटिंग मेथड, ट्रबल शूटिंग टूल्स है गाइस. ये
देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। देन आफ्टर हमारे पास IP, SLA, नेट फ्लो ये देखेंगे। देन वी विल द नेटवर्क ऑटोमेशन। अब यहाँ पे जो नेटवर्क ऑटोमेशन है गाइस, दिस आर लिटिल बिट प्रैक्टिकल बेस्ड, पाइथन वगैरह है ना, वो सब यूज करेंगे यहाँ पे हम। Then we will see the IPsec protocol, IPsec site to site VPN will see, GRE, and then यहाँ पे DM VPN मैंने ऐड नहीं किया, तो let's say add DM VPN as well। हालांकि DM VPN अगेन सिलेबस का पार्ट ना हो, बट फिर भी मैं आपको बढ़ाऊंगा। DM VPN की स्पेलिंग गलत हो गई है, DM VPN, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन आफ्टर वायरलेस पढ़ेंगे PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। देखो ये सीक्वेंस ऐसा नहीं रहेगा, सीक्वेंस मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सीक्वेंस पे रहेगा, एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया इसी सीक्वेंस पे चलेंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन द टॉपिक विल सी द सीक्वेंस। वायरलेस सेक्शन देखेंगे PBR, VRF, वर्चुअलाइजेशन, देन DM VPN थ्योरी, MPLS, SD-WAN। दिस इज 48 कंटेंट विल सी गाइस in CCNP enterprise। So enterprise means Encore or NRC, that is why we called as CCNP enterprise। And now if I talking about the practical, देखो प्रैक्टिकल की हम बात करें, अगर मैं CCNA की बात करूं तो इसमें 40% थ्योरी रहती है, ये रेशो मेरा है बनाने का, और 60% हमारा प्रैक्टिकल रहता है। और CCNP के अंदर 20% थ्योरी रहता है और 80% प्रैक्टिकल रहता है। रेशो ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि ट्रबल शूटिंग रिलेटेड चीजें हैं हमारे यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट CCNA एंड CCNP। जो ड्यूरेशन आपको लगेगा इसमें टोटल, दैट इज ऑलमोस्ट, CCNA की हम बात करें 1.5 मंथ आपको लग जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। CCNP के अंदर आपको 3 मंथ्स लग जाएंगे, बट अगर आप दोनों को कंबाइन करके करोगे, और ऑब्वियसली ऐसा मैंडेटरी, अगर आप CCNA कर रहे हैं तो CCNP मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आपको एडवांस नॉलेज भी आ जाती है नेटवर्किंग की, और आपके पास एक ट्रबल शूटिंग स्किल भी आ जाती है, और आपके CV में एक चीज एड ऑन हो जाती है, ठीक है। So if you do the CCNP and CCNA, so it will take almost 4 to 5 months you can take, 4 to 5 months, 4 से ज्यादा ही लगेगा, अप्रोक्सीमेट 5 मंथ मान के चलें, इफ यू डू CCNA plus CCNP, right? तो then after, if I talking about the practical, which tool we will use, so guys I will teach you in 3 tools. One is packet tracer, second is GNS3, and third is EVANG और PNetLab। ये दोनों भाई बहन है गाइस, these are the brother and sister। Till 1 year ago I was using EVANG, but past 1 year I'm using PNetLab. Why? Because PNetLab is a tool that is free of cost, first of all, and if you want to install any devices like router, switches, firewall, load balancing, server, Windows, PNetLab has PNet Cloud. In PNet Cloud we have free softwares are there, we can download it from there. So if you use EVANG, so you have to find the router images on the internet, switches images on the internet, but in PNetLab don't go anywhere, just download any software from PNet Cloud. If you want to learn Palo Alto firewall, so don't go anywhere, go to PNetLab and download from there. If you want to learn FortiGate firewall, just go to PNetLab and download from there. So we have PNet Cloud, so we will use PNetLab. In the initial we will see the packet tracer. They go depend on our topic guys, everything depend my topic, depend on topic. Sometime I will go to packet tracer, sometime go to DNS3, sometime go to PNetLab. So these 3 tools we have to install in my laptop, and as per the requirement we will do. If I talking about CCNA, in CCNA
we will see, we will do practical on packet tracer plus GNS3. But CCNP, we required PNet lab. So that's why we use 3 of tools. And if I talking about the system requirement, if you do CCNA only, so you need only 4 GB of RAM is enough on your laptop, and all everything we will do in packet tracer, right? If you do CCNA, but if you do CCNB, so at least 8 GB RAM should be there in your laptop. But if it is higher than 8 GB, that is very okay, that's perfect. But 8 GB is mandatory, and if you have 8 GB, I will highly recommend to upgrade from 12 GB or 16 GB. Why? Because when you learn something, so you have to some आपका कुछ इन्वायरमेंट भी होने चाहिए ऐसे, तो मेक श्योर करें कि आपके पास 8 GB रैम है तो उसको 16 GB 12 GB में कर लें। और रैम कुछ महंगा नहीं आता, यू जस्ट अप टू, अगर आपके पास 8 GB रैम है और इफ यू वांट टू परचेज 8 GB रैम, यू वांट टू अपग्रेड, मे बी 2000 to 3000 विल टेक मैक्सिमम टू अपग्रेड योर रैम। And if you want to learn more things, so you have to upgrade your devices. But if you have a 8 GB RAM, you can do CCNA, CCNP, don't worry. Entire practical you can do with CCN 8 GB. I have 8 GB RAM of my laptop, I have 16 GB of laptop, I have 24 GB of system in my, I have different system in my I have. So in 8 GB I can do CCNA, CCNP. But if you learn in future, like a firewall kind of stuff, so you have to upgrade 16 GB. Minimum requirement 16 GB if you want to learn firewall. And if you want to make a network engineer, so you have to do CCNA, then after you have to do CCNP. Give me a moment. What is actually a right path if you want to become a network engineer, or if you want to get a job? So always start with CCNA, and then after you just, this is a career path, guys. It's your choice, it's your depend on you, you will take or not. I am just guiding you guys. मैं सबको गाइड कर रहा हूँ, करना ना करना, उस रास्ते पे चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। सही रास्ता तो हर कोई बताता है, चलने के ऊपर बात होती है, ठीक है? तो अगर आपको अपने नेटवर्क में, अगर आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हो, इफ यू आर सीरियस इन योर कैरियर इन योर नेटवर्किंग, तो आपको करना पड़ेगा। आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के समझ में आएगी, ठीक है? So CCNA, then after you have to do CCNP, then you have to do some firewall related stuff. If I talking about firewall, so I will recommend to you guys at least 2 firewall you have to should take. One is FortiGate and second is Palo Alto. Why I'm guys recommending these 2 firewall? Because these 2 firewall is a market leader firewall. If you go anywhere, any good companies, any MNCs, you will get these 2 firewall maximum case, FortiGate and Palo Alto. And we have another firewall, that is a Checkpoint. And some companies actually hire the firewall engineer expert, right? And they are looking for the engineer having the must of multiple firewall expertise. Let's say Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Cisco FTD. If you have this kind of skills in you have, then you can work with the firewall team as well. तो ऐसा नहीं है कि राउटिंग स्विचिंग करने के बाद आप अपने नेटवर्क, अपने कैरियर को सिक्योरिटी की तरफ भी लेके जा सकते हो। तो सिक्योरिटी में भी डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, है ना? तो वहां पे आप फायरवॉल इंजीनियर के साथ आप काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में फायरवॉल टीम थी जहां पे वो फायरवॉल ही सब मैनेज करते थे। और हमारी कंपनी में सोफोस फायरवॉल भी थे, फोर्टिनेट भी था, पालो अल्टो भी था, चेकपॉइंट भी था। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द कंपनी यूज मल्टीपल वेंडर्स फायरवॉल? बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे फीचर जो चेकपॉइंट में जो कि अदर फायरवॉल्स में नहीं है, ऐसे फायरवॉल्स है जो फीचर जो पालो अल्टो में इनमें नहीं है ना? तो ये भी एक मेथड होता है, रीजन होता है। तो मल्टीपल वेंडर्स के सिस्टम यूज होते हैं। तो अगर आपको फायरवॉल करना है, मींस आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट पालो अल्टो एंड फोर्टिगेट करें। चॉइस योर्स गाइस, करना ना करना वो आपके ऊपर है। आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि आपको क्या एक नेटवर्क पैरियर आपका पाथ होना चाहिए फिर द गुड इंजीनियर अगर आपको बनना है। देन आप इसको करने के बाद आप कुछ लोड बैलेंसिंग क्या कर सकते हैं, जैसे LTM5 कर सकते हैं, LTM5।
या फिर बिग आईपी जैसे कुछ चीज़ आप कर सकते हैं। ये लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और आप एक कंपनी के लिए तैयार हो जाते हैं, एक जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ गाइस, इट्स अ एवरेज। मैं बता रहा हूं कि कल को ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि गाइस आप यू जस्ट गो एंड सर आपने तो बोला था इतना लगे मिलता है, मेरे को तो कंपनी इतना दे रही है, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ऑन कंपनी बजट, कंपनी के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी है क्या, एमएनसी है, नॉर्मल है, लाला कंपनी है, हर चीज मैटर करती है, ठीक है। उसके ऊपर से सैलरी पैकेज डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आप सीसीएनए कर लेते हैं और एक अच्छी एमएनसी की बात करूंगा, मैं लाला कंपनी की बात नहीं करूंगा। लाला कंपनी में जाओगे तो वो 10,000 रुपये पर देना चाहेंगे नहीं आपको। आपने सीसीएन भी कर रखा होगा, आप फ्रेशर आपको तब भी आपको, और अगर आप फ्रेशर्स हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रेशर्स, इफ यू आर फ्रेशर गाइस एंड इफ यू डू सीसीएनए, तो आपको जो पैकेज मिलता है एटलीस्ट 2.5 lakhs टू अप टू 5 lakhs। ये फ्रेशर्स टू 1 to 2 years एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव सीसीएनए लेवल नॉलेज एंड इफ यू आर द फ्रेशर गाइस, तो वो 2.5 लाख से लेके बीच में आपकी सैलरी तय होती है। इट्स नॉट अ फिक्स सैलरी, ये एक अनुमानित है, जो एक एवरेज दिखाया जाता है कि एक ऑन एन एवरेज ये सैलरी बच्चे की होनी चाहिए, एक इंजीनियर्स की होनी चाहिए। बट इफ यू हैव द लेट्स से 1 or 2 year experience in CCNA level knowledge, then your salary will up to 5 lakhs। अब आपको 7 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, वो आपकी किस्मत है भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे कंपनी में काम करता था जहाँ पे मेरी सैलरी बहुत छोटी सी थी, मामूली से स्टार्ट किया था मैंने 12,000 से स्टार्ट किया था। उस कंपनी में बढ़ते बढ़ते मेरी सैलरी जो है वो 18,000 हो गई थी। 2 से 3 साल लगे थे इस सैलरी को अचीव करने के लिए, ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है। एक कंपनी में रह के सैलरी भी बढ़ती नहीं, आपको भी मालूम है। बट नॉलेज मेरी नहीं बढ़ रही थी, मेरी टाइम के साथ मेरी सैलरी बढ़ी थी, क्योंकि मेरे को 3 साल हो चुके थे कंपनी। हर टाइम के बाद कंपनी में एक ऐसा सीटीओ आ गया जिसने पूरे नेटवर्क टीम को बुलाया, इन सिस्टम जितने भी बंदे हो उनके उनकी स्किल्स पूछे। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीमेंट की बात हुई तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ 1% बढ़ाई गई। जहाँ पे मेरी सैलरी 5, 7, 8, 10 1% बढ़ाई। तो जब मैंने बोला सैलरी तो सर बहुत कम है, कह रहा सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ गाइस, 18,000 रुपये सैलरी। उस टाइम मैं आज से बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2017 और 18 के आसपास की, नॉट टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 years और 3 years। दैट टाइम गाइस इतनी सैलरी मेरी हुआ करती थी। तो कंपनी को जब मैंने बोला तो कंपनी ने कहा कि भैया आपको सैलरी ज़्यादा दे रहा हूँ आपके टाइम के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से। सीटू ने ये जवाब दिया, आपको आता क्या है? सीसीए नहीं आता है सिर्फ, बस क्या आता है आपको? इससे मैं आपको क्या करवा लूंगा मैं? ऐसे ही बोला था उन्होंने, सर सैलरी नहीं बढ़ सकती आपकी, सैलरी अगर लेनी है तो आप दूसरी कंपनी ढूंढ लो या तो अपनी नॉलेज बढ़ा लो। बाकी में ऐसा होता है, उन्होंने वो कड़वी बोलते थे लेकिन वो ऐसी चीज बता देते थे ना, आपको बैठा के समझा भी देते थे। पहले डांटते थे, फरकाटते थे, समझाते थे। वही मैं उनको अपना आइडियल मानूंगा। आज मैं जो भी हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, जिस लेवल पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो हैप्पी हुए, खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तू काफी आगे निकल गया। दैट्स मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे तो कहाँ आ गया हूँ, मुझे भी मालूम है। हर किसी का वो टाइम आता है। लेट्स से सबको मालूम है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको मालूम है कि अगर हम एक कंपनी खोलेंगे या कोई कंपनी, तो यार हमें ना यहाँ पे सेटअप करना है। वो सेटअप को करके उस सेटअप का मैं एक चार्ज ले लेता हूँ, और उस सेटअप को करने के बाद उसका फिर मैनेजमेंट मैं भी करता हूँ, एक मंथली इनकम भी आती रहती है। तो अप्रोक्सीमेट इतना मेरा साल का अच्छा खासा बन जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। इट्स नॉट अ फिक्स, क्योंकि मैं सैलरी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। पिछले 1.5-2 साल से मैंने जॉब छोड़ी हुई है और मैं एज अ कंसल्टेंट कर रहा हूँ। 15 साल मैंने जॉब किया, देन अब मैं यहाँ पे कंसल्टेंट और ट्रेनिंग ये सब चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो एक टाइम के बाद आपको भी मिलता है, अगर आप करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, नॉलेज को अक्वायर करते हैं तो। और 15 साल की अगर मैं कैरियर की बात करूँ, उसमें तो मैंने 4-5 साल तो मैंने ऐसे ही वेस्ट किए थे, सिर्फ ऐसी कंपनी में जहाँ पे यार 9 से 6 जॉब करना कोई काम ही नहीं है, 2 से 3 टिकट आगे आ गए तो घर चला गया, सैटरडे संडे ऑफ। इससे बड़ी क्या है, जब वो कंपनी बंद हुई तब आंख खुली। तो दैट्स वाई गाइस, आपको बता रहा हूँ कि ये पैकेज इट्स नॉट, मैं ये कहूंगा कि ये कोई ज्यादा बड़ा पैकेज नहीं, आप भी अचीव कर सकते हैं। बट ये है कि आपको कम से कम एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको अपग्रेड करना है। आज आपने सीसीए नहीं किया तो सीसीए ने खत्म करने के बाद आप कुछ अब क्या कर रहे हो नेक्स्ट? क्योंकि पैसा अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, जो आप ट्रेनिंग सीखते हैं वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं गाइस। तो अपने ऊपर नॉलेज। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो क्या करते हो? इंटरव्यू देने जाते हो कंपनी में जॉब करने, यस, लेकिन आप अपने आप को बेचने जाते हो कंपनी को। खरीदो मुझे, कितने में खरीद सकते हो? और कंपनी बैठी है आपको खरीदने के लिए, पैसा देने के लिए।
लेकिन भाई उस हिसाब से अपनी स्किल्स तो एनहांस करो। मैं आपको बता दूं कि आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मार्केट में जॉब नहीं है। मैक्सिमम केस मैं भी उनमें से था, मैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। भाई जॉब है, आप जॉब लेने के काबिल तो बनो, आप नॉलेज तो एक्वायर करो। कंपनी को चाहिए सीसीएनए चाहिए, उसको थोड़ा बहुत राउटिंग वाला कंसेप्ट बनना चाहिए, थोड़ा बहुत फायरवॉल उसको आना चाहिए, उसको बंदे को थोड़ा बहुत आपका क्लाउड भी आना चाहिए। आज मैंडेटरी हो चुकी है गाइस। अब ये सोच के चलो कि सीसीएनए कर लिया, सीसीएन पे जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सीसीएनपी करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है, ढूंढ रहे हैं लोग। मेरे पास डेली बेसिस पे दोस्त कोई ना कोई कॉल कर देता है, कोई जॉब हो तो बताना, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो कई बार मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट भी आती है, मैं सिर्फ बिना इंटरव्यू के बंदे को जॉब लगा देता हूँ। सिर्फ मैंने अपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला सर अपने इंटरव्यू ले लीजिए, आपको लगता है ठीक तो यहाँ डाल दीजिए। मैंने ऐसे 8 से 10 लोगों को प्लेस किया हुआ है। बड़ी एमएनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी वो एमएनसी नहीं है, नॉर्मल कंपनी, लेकिन अच्छे खासे पैकेज पे भी काम कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो जस्ट ये कि आपके पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए। मैंने वो 5-10 बच्चों को क्यों चूज किया, मेरे पास तो इतने सारे सालों से इतने स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई मैसेज डाल देता, सर कोई जॉब हो तो बताना। तो जॉब लेने के लिए देखो, जॉब मांगनी पड़ती नहीं है, जॉब अपने आप आपको मिलती है जब आप उसके काबिल बन जाते हो। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को, मेरे तक ना सर हर वीडियो के अंदर आपको ये बातें मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, और आप इरिटेट हो जाओगे, सर कितनी बार सर समझाओगे। हाँ जी बोलिए। सर सर मेरा एमटेक है सर, लेकिन पैकेज बहुत कम है सर मेरा। मैं बड़ा कहता रहा हूँ प्रॉब्लम हो कि रहा है, आपको कहानी मैं लग रहा है सच है यह मैं सब। मैं कहता रहा हूँ कि आप एमटेक कर लें, बीटेक कर लें, पीएचडी कर लें। आज की डेट में वो जमाने गए जो बीटेक की डिग्री लेके आपको जॉब मिलती थी, नहीं मिलती है। बीटेक वाले घूम रहे हैं। आपको जॉब चाहिए तो आपको स्किल सिक्योर करना पड़ेगा। और वो टाइम भी गया जब ये बोलते थे, देखो आज के डेट में ये नहीं पूछते आपने बीए किया हुआ है, हाँ बीए किया हुआ है, तो आपने नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो, आप आईटी में क्यों आ गए। ये जो सिली क्वेश्चंस है ना, आज से 8 से 10 साल पहले पूछा जाता था। मैं खुद बीकॉम होल्डर हूँ गाइस, मैं बीकॉम किया हुआ मैंने, लेकिन मेरे को आईटी में मजा आ गया। अब अगर कोई बोलेगा कि भैया कि तुझे तो आइसक्रीम पसंद है, तू फ्रूट्स क्यों खा रहा है या ये क्यों खा रहा है, भाई मेरी मर्जी में खा रहा हूँ, मुझे पसंद है खा रहा हूँ। तो इसका मतलब आज के डेट में ये चीजें नहीं पूछते। आज के डेट में देखो, आपको एक ही चीज एनहांस करनी है, स्किल्स एनहांस करनी है। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिंपल सा आप अपने को बेचने जा रहे हो, अब अपनी बोली लगाने जा रहे हो। तो बोली लगाने के लिए आपको खरीदेगा कोई तभी ना, जब आपके अंदर वो काबिलियत हो। ठीक है एक, अब आप सिंपल से फंडा है, छोले भटूरे खाने जाते हो, बाजार में चले जाओगे तो 20 रुपए प्लेट या 30 रुपए प्लेट मिलेगा। अग्रवाल पे चले जाओ, ग्रोवर पे चले जाओ, वही प्लेट 150 रुपए की बिक रही है, तो लोग खा भी रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? 150 रुपए की छोले भटूरे की वही पैसे, छोले भटूरे वही है, वही मैदा, वही 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 क्या नाम है, छोले हैं, वही मसाले हैं। हाइजीन का फर्क है, मसाले का भी फर्क होगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो जितने मसाले आप अपने अंदर ऐड करोगे उतना टेस्टी आप बनोगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। ये अपने 15 साल के कैरियर में इतनी सारी चीजें मैंने ठोकर ऊपर नीचे अप डाउन देखे ना गाइस। मैं हर बच्चे को यही समझाता रहता हूँ, और हर बच्चे, आई डोंट नो, कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, सर हर बार आप यही चीज समझाते हो, क्योंकि गाइस मैंने वो चीजें देखी हैं, और मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा बंदा ऐसा ना देखे। जो मेरे एक्चुअली में मेरे जो अंडर में जो बंदे ट्रेन होते हैं, मैं उनको हर बार ये चीज समझाता हूँ। तो दैट्स वाई, तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, ऑल माय थिंग्स। सीसीएन के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे। तो जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, कल हम लोग कंटिन्यूसली कंटिन्यू करेंगे एज पर द सिलेबस, जो भी हमारे कंटेंट रहेंगे, ठीक है, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे क्लासेस होंगे दे ऑल आर रिकॉर्डेड गाइस। साथ साथ आपको मैं कुछ ना कुछ टास्क देता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करें, उसको लैब्स को करें, जिससे आपका इनहेंस होगा। ठीक है, जो लैब सेटअप है उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, वो मैं करवाऊंगा। कहीं पर फंसोगे, आपकी हेल्प होगी, 100% हेल्प होगी। 24/7 में अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। कभी कोई ऐसा नहीं कि 24/7, जैसे एक बात की, ऑलमोस्ट मैं अवेलेबल रहता हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास, आपको हमेशा हेल्प होगी, ठीक है। मेरी तरफ से 100% मेरा रहेगा, लेकिन मुझे उतना ही रिवर्ट आपके एंड से चाहिए। अगर आप सीरियस है नेटवर्किंग में, मैं कल भी सच्चाई बोलूंगा भैया, वही लोग करना जो सीरियस हो, फालतू वाले मत आना। क्योंकि मेरे लिए जितना टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं अपना भी टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं आपका भी टाइम नहीं खराब करना चाहता। ये कड़वी सच्चाई है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, बस सच्चाई है। अगर इन चीजों को आप झेल सकते हो तो ही आप करना। आपको प्रैक्टिस, आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस, आज ट्रेनिंग लिया, मैं प्रैक्टिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, तो ही ज्वाइन करना। सिर्फ क्लास ले लिया और इधर मूवी देखने चले गए, रील्स देखने चले गए। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, सर मैं जॉब करता हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं, अगर आप एक एक बच्चे को बता रहा हूं, मैं ये लिख के दे सकता हूं 100%। अगर मैं आपका 1 डे का रूटीन निकाल दूं ना,
कि क्या करते हो, उसमें मैं 2 से 3 घंटा आपका मैं फ्री निकाल दूंगा, जो आप यूं ही वेस्ट करते रहते होंगे। तो ये सब चीजें हैं गाइस, धीरे धीरे हम टाइम टू टाइम सब चीज सीखेंगे। मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कैसे आप चीजों को सीखोगे, कैसे आप याद रखोगे। कई बार होता है सर मैं ये चीज याद करता हूँ पीछे भूल जाता हूँ, उसको कैसे याद करना है आपको, क्या तरीके होंगे इन चीजों को याद करने के लिए, प्रैक्टिकल्स कैसे रहेंगे। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ आपके मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, साथ साथ जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपको साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी बताता रहूंगा मैं। जैसे कोई टॉपिक डिस्कस करा ओएसपीएफ, अब इस ओएसपीएफ के अंदर मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई इंटरव्यू 8 से 10 निकल जाएंगे। तो मान के चलो कि हमने अगर 2 मंथ अगर हमने क्लासेस लिया, एग्जांपल सीसीएनए की एग्जांपल बात कर रहा हूं, 60 डेज होते हैं, और हर दिन में अगर मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताता हूं तो 300 क्वेश्चन तो आपको यही इंटरव्यू के निकल जाएंगे। मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, एग्जाम में कैसे आएंगे, मैं सब कुछ लिखवाता रहूंगा साथ साथ, तो आप लोग प्रिपेयर होते रहेंगे टू एंड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट्स है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी गाइस, देन वी विल लीव द क्लास एंड विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अगर कोई देखो, मेरे को तारीफ से ज्यादा शिकायत सुननी अच्छी लगती है, तो अगर आपको लगता है कि कभी कभी मैं फ्लो थोड़ा तेज आ रहा हूँ, कुछ ऐसा है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओपन है यहाँ पे, कोई भी चीज ऐसा नहीं है। अगर लगता है कि सर यू आर डूइंग वेरी फास्ट, सर लिटिल बिट स्लो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम ओपन रहना है, ठीक है, घर जैसी बात है, ठीक है, लेकिन चीजें हम कॉर्पोरेट लेवल की सीखेंगे, लेकिन बात घर जैसी रहेगी कि कभी कोई दिक्कत आए तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क मी। ठीक है, बस आपको ट्रेनिंग के दाम पे ये रखना है कि आपको सिर्फ मुझे सुनना है, और सबको मौका मिलेगा पूछने के लिए। मैं भागता नहीं हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़े आप लोगों को डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मैं दूंगा। ठीक है, तो टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा वो आप लोग को जो है टीम से पता लग जाएगा। तो जो भी लोग हैं तो कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कल से हम लोग अपना ऑफिशियल कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और Sir, one more question, Rahul here जी again. जी जी बोलिए। Uh, in a CCNP, we have two parts, Encore and NRC. जी And if I after study, if I want to do the real certification of a CC and Cisco, so how to approach in a Prometric website or from where? यस, Like, वहीं पे जाना पड़ेगा, वहां से आप कर सकते हो। आज के डेट में तो ऑफलाइन वाला भी मतलब चलता है, ऑनलाइन वाला भी चलता है। पहले तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन भी कोविड के बाद से उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया कि आप ऑनलाइन से भी, यानी कि आपको वो एपिसोड के वेबसाइट पे जाके ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसी की टेंशन मत and लेना, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें इन फ्यूचर। what is the cost for actual cost in देखो terms of a dollar? डॉलर में होता है, जैसे $400 का मेरे ख्याल से आपका एनकोर का है, और $300 का मतलब आपका एनआरसी का है, तो ऑलमोस्ट $700 का लगेगा। और $300 मेरे ख्याल से सीसीएनए का भी है, बट अगर आप सीसीएन भी करो तो डो नॉट वेस्ट योर मनी ऑन सीसीएनए, जस्ट डू आफ्टर सीसीएनए डू जस्ट द एनकोर एनआरसी, $700 You इनफ। you mean to say that total CCNP cost will be nearby $700 80,000 700 yes you can say, in terms of INR? yes you can say, Okay. कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कई And बार sir, and what are the pattern of the questions, like a simulation kind of thing or FAQ? सॉरी दोबारा बोलिए, मेरे को समझ में नहीं आया, पार्डन प्लीज। इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं एनकोर के और एनआरसी के, ओके, ऑब्जेक्टिव मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। एमसीक्यू, ओके एमसीक्यू रिलेटेड स्टफ्स आते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी आते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ, ओके, ठीक है, सिमिलर टू लाइक नियर टू लाइक CCNA एग्जाम। यस इट्स काइंड ऑफ थिंग, आप बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं सर सीसीएनए का डम दे दो, डम कुछ नहीं होता गाइस, कभी भी आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, फंसते नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, रिवीजन करना है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑफ CCNP, अभी देखो, अभी जो परसेंटेज भी बताते नहीं है, पहले तो परसेंटेज बताते थे, अब वो भी नहीं है। आपकी एक्चुअली हाँ, लॉन्ग टाइम बैक सर CCNA जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो इन द ईयर 2014-15, आई थिंक तो 80 to 75% का मार्क्स था वहां पे। इसका भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या CCNP का? नहीं, अभी देखो मार्क ना परसेंटेज आपको पता भी नहीं लगता। अभी जो लेटेस्ट जो बाद में उन्होंने अपडेट किया ना ये अपना वर्जन, तो उसके बाद अभी सिस्को ने क्या किया है कि दे इंट्रोड्यूस की आपको परसेंटेज बता नहीं है, सिर्फ वो आपको पास और फेल बता देते हैं, दैट्स इट। दे डोंट डिस्प्ले द परसेंटेज मार्क्स, इट जस्ट से द पास और फेल, दैट्स इट। And sir, the validity of a CCNP certificate 3 is years 3 years 3 years, similar to CCNP, as per CCNA. as per same।
Okay. ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी करने के, अगर जैसे एक्सपायरी हो जाती है उससे पहले आप कोई भी एक CCNA का कोई भी एक आप री एग्जाम दे दीजिए, आपके बाकी भी रिन्यू हो जाते हैं अपने आप ही। ये मैं आपको सर्टिफिकेट वाले पार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। Okay. Okay. ठीक है। Uh, सो यस, yeah, thank you नयन जी सर। आई थिंक सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू और सो मच। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो कनेक्ट कर सकते हैं एडमिशन टीम से और काउंसलिंग टीम से। अगर किसी का डाउट है तो गाइस प्लीज आस्क, और वी कैन समराइज द सेशन टुडे। ठीक है, एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। फिर सर हम लोग टुमारो डिस्कस करते हैं द सेम टाइम। ठीक है, 10 से 12 या, का सेशन हमारा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ओके, द थैंक यू टाइम, सो थैंक यू थैंक गाइस, यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर।